بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول یہ چاہتے یہ شدتیں کی جلد دوم کی قسط نمبر 9 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ سمان احمد کے ساتھ گھر جاتے بالکل خاموش رہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ علی وہیں سے واپس اپنے گھر چلا گیا تھا جبکہ سمان اسے چھوڑنے گھر آیا تھا۔ ٹیکسی کے رکتے ہی وہ فوراً باہر نکلی تھی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ لان میں ماما ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ السلام علیکم ماما، کیا ہوا؟ ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ وہ فوراً ماما کے پاس آئی تھی۔ کچھ پریشانی سے انہیں دیکھا۔ پاپا کی طرف سے تو ہر وقت اسے دھڑکا ہی لگا رہتا تھا، اب بھی یہی حال ہوا تھا۔ بہت دیر لگا دی تم نے آنے میں؟ میں پریشان ہو رہی تھی۔ علی کے نمبر پر کال بھی کی تھی مگر نمبر بزی تھا۔ وہ ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کر کے سامان بھی اندر آ گیا۔ ارے سامان تمہارے ساتھ آیا ہے؟ بات روک کر انہوں نے پہلے سامان کو دیکھا اور پھر سے سامان ان کے قریب چلا آیا۔ زرش نے صرف سر ہی ہلایا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے سامان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ تم تو اسلام آباد گئے ہوئے تھے نا؟ جی ابھی لوٹا ہوں، مگر شائستہ بیگم کی الجھن نہیں گئی تھی۔ میں نے زرش کو راستے میں پک کیا تھا۔ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اور چچا جان؟ اچھا، میں بھی حیران ہو رہی تھی کہ زرش تمہارے ساتھ کیسے آئی۔ میں ٹھیک ہوں اور تمہارے چچا جان بھی ٹھیک ہیں۔ آؤ اندر چلو۔ اگلے ہی لمحے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ سامان لاؤنج کی طرف چلا گیا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ چادر الماری میں رکھ کر سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے سنہرے بال کو کیچر میں جکڑتی وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ یاسمین کو شائستہ نے چائے بنانے کو ہی کچن میں بھیجا تھا۔ تم رہنے دو، میں بناتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں جا کر بھی کیا کرتی، اس نے خود کو کچن میں ہی مصروف کرنے کا سوچا تھا۔ اس نے چائے تیار کی تو یاسمین نے ٹرالی بھر لی تھی۔ تم لے جاؤ، ماما میرا پوچھے تو کہہ دینا پڑ رہی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں ماما نے تصاویر والا البم اس کے سراہنے رکھ دیا تھا۔ البم اس نے بے دلی سے پرے کھسکاتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ کورس کی کتاب لے کر اسٹڈی کرتے ہوئے بھی ذہن بار بار الجھ رہا تھا۔ شادی کے بعد وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنے ذہن کو نارمل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اچھی خاصی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ ایسے عالم میں کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ 2 دن سے کالج نہیں جا رہی تھی۔ اس دن لڑکیوں کی گفتگو کے بعد اس نے کالج چھوڑ دینے کا سوچا تھا مگر ایگزامز دینے تھے۔ وہ اچھی خاصی تیاری کر چکی تھی۔ بے شک شادی کے دنوں میں بھی حرج ہوا تھا مگر اس نے سوچا تھا وہ سب کمپلیٹ کر لے گی۔ لیکن شادی کے دوران جو بھی واقعات رونما ہوئے تھے اس سب نے اسے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا اور اب رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی تھی۔ وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے نہ جانے کن کن وسوسوں میں گم تھی کہ سامان نے آہستگی سے دروازہ کھولتے اندر قدم رکھا تھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سامان نے مسکرا کر دریافت کیا تھا۔ زرش نے جواب نہیں دیا۔ بستر سے اتر کے اسٹڈی ٹیبل کے پاس آ کر رکی تھی۔ اسے سامان کا اپنے کمرے میں آنا اچھا نہیں لگا تھا مگر وہ کہہ نہیں سکی تھی۔ ناراضگی اپنی جگہ مگر کسی کے سوال کا جواب دینا بھی اخلاقیات میں آتا ہے۔ سامان نے فوراً مسکرا کر کہا تھا۔ زرش نے لب دانتوں تلے دبا لیے تھے۔ سامان کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا جو اس نے بستر پر رکھ دیا تھا۔ زرش نے نظر انداز کیا تھا۔ خواہ مخواہ کتابوں کی ترتیب درست کرنے لگی تھی۔ سامان بستر کے سرہانے اسی جگہ جا بیٹھا جہاں سے وہ اٹھی تھی۔ اسٹڈی ہو رہی ہے؟ وہ چپ ہی رہی تھی۔ کالج چھوڑنے سے متعلق کسی کو بتایا بھی ہے یا نہیں؟ زرش اب بھی نہیں بولی تھی۔ سامان نے بڑے ضبط سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف سے پشت کیے خواہ مخواہ کتابوں سے الجھی ہوئی تھی۔ سامان نے ایک گہری سانس خارج کر کے تکیہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا تھا۔ تکیے کے نیچے رکھا سرخ البم سامنے آ گیا تھا۔ سامان نے اٹھا لیا تھا، ایک نظر اسے دیکھا اور پھر البم کو۔ یہ تصویریں علی دے کر گیا تھا۔ سامان نے البم کھولتے ہوئے پوچھا تو وہ پلٹ کر آ گئی تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ خواہ مخواہ البم پڑا رہنے دیا، اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیتی۔ اب نہ جانے سامان کیا سوچے گا۔ وہ کون سا دیکھ رہی تھی؟ بتا رہا تھا علی، تصویریں آ گئی ہیں، کیسا ہے رزلٹ؟ سامان نے اس کے پر سر ہلا کر اسے دیکھا اور پھر وہ کچھ اور پزل ہو گئی۔ تصویریں تو اچھی ہیں۔ سامان ایک ایک تصویر دیکھ رہا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ روتا دھوتا چہرہ آئے گا مگر فوٹوگرافر کا کمال کہوں گا، اچھا خاصا رزلٹ ہے۔ سامان اس کی ایک ایک تصویر دیکھ رہا تھا، مسکراتے کسی بھی تصویر پر نہ تھی۔ جھکے سر اور جھلکتی آنکھوں کے باوجود فوٹوگرافز کی مہارت نے ہر تصویر میں موجود چہرے کے تاثر کو اس انداز میں رونما کیا تھا کہ سنجیدہ چہرہ کے تاثرات بڑا بھلا اور اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ سامان نے البم بند کر کے اسے دیکھا تو وہ چہرہ موڑ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ زرش اپنے عقب سے آتی آواز اور سانسوں کی تپش پر
वो बे इंतहा नर्वस हो चुकी थी। जरी इस पुकार में दिल की तमाम शिद्दतें पहना थी। जरिश को अपनी दोनों हथेलियां तक गीली होती हुई महसूस हुई। समान ने इसके कंधों पर हाथ रखा तो वो मजीद कंफ्यूज हो गई। वो समान अहमद से जी भर कर नफरत करना चाहती थी, बदतमीजी की हद तक बुरा सलूक करना चाहती थी, मगर समान के अंदाज में न जाने ऐसी क्या बात थी कि इसके होंठ कुछ तलक कहते कहते सिल जाते थे। वो जारहाना अंदाज में अपनाते अपनाते साकिन हो जाती थी। इन 2-3 दिनों में इसने इस रिश्ते और समान अहमद की ज़ात को इतना सोचा था कि अब समान का ख्याल आने से ही घबरा जाती थी। इसके दरमियान एक अटल हकीकी और शरई रिश्ता था, इतना मजबूत कि लाख चाहने के बावजूद इसे तोड़ नहीं सकती थी। दिल में बेपनाह नफरत से ही, मगर कभी इसने इस शख्स को चाहा था, बड़ा मान दिया था, इज्जत दी थी, और समान की पुकार पर इसकी आंखों की ज़मीन गीली हुई थी, इसकी ज़ात मजरूह हुई थी। बड़ी आहिस्तगी से इसने समान का हाथ झटक दिया था। अब नफरत के बाद इसके अंदाज में बड़ा अजीब सा ग्रेज और तलखी दर आई थी। चीखने चिल्लाने से वो अब नज़रअंदाज चीखने चिल्लाने से वो अपनी अंदर की भड़ास निकाल लेती थी, जबकि अब जरिश समान को इसके इस अंदाज में बड़ी अजियत दी थी। बाजू पकड़कर रुख फेर कर अपने सामने कर लिया था। जो भी गुस्सा या तलखी है वो मुझ पर निकालो, इस तरह रुख मोड़कर चुपचाप खड़े हो जाना तुम्हारी आदत नहीं। समान ने मुस्कुराकर इसे उकसाया था। वो एक लगते को ही समान के मुस्कुराते चेहरे को देख पाई थी। अगले ही पल समान के मजबूत हाथ की गिरफ्त से अपना बाजू निकालकर वो स्टडी टेबल के सामने दरी चेयर पर जा बैठी थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही सुननी है, आप चले जाएं। कीबोर्ड पर उंगलियां मारते इसने कहा तो समान ने एक गहरी सांस खारिज करते हुए इसकी तरफ निगाह बढ़ाते, गर्म सांस की तपिश ने इसके चेहरे को छुआ तो वो घबराकर थोड़ा सा आगे को हो गई थी। आप जाएं प्लीज। इसने इन गुजरे दिनों में इस रिश्ते को इतना सोचा था कि अब ये ताल्लुक एक खुली हकीकत इसके सामने था। वो लाख इनकार करती, रद्द करती, मगर हकीकत यही थी कि इसका समान अहमद के साथ बड़ा गहरा और मजबूत ताल्लुक है, जिसे वो चाहकर भी जुटला नहीं सकती थी। इनकार करना तो एक तरफ था, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। समान अहमद ने रिवॉल्विंग चेयर को अपनी तरफ घुमाकर बड़ी संजीदगी से कुर्सी की दोनों बाजुओं पर अपनी हथेलियां धरी थी। जरिश इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। पजल सी होकर समान को देखने लगी। इसकी आंखों में एक खौफ सा आ ठहरा था। कल से तुम कॉलेज जा रही हो, जब तक डेट शीट नहीं आ जाती इस तरह तुम अपना ही हर्ज कर रही हो, मुझे नहीं जाना। अब के इसने बड़ी तलखी से कहा था। जरीश समान ने इसकी आंखों में देखा तो वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो दी थी। नहीं जाना मुझे वहाँ। आप लोग एक इल्ज़ाम लेकर जी सकते हैं, मैं नहीं सामना कर सकती घटिया लोगों का। वो फट पड़ी थी। इससे क्या होगा, ये तो फरार हुआ ना। इन्हीं लोगों में रहकर ही तो हकीकत मनवाना असल जब्त और बहादुरी है। ये तो कोई बात ना हुई। हाँ, आपके लिए तो ये कोई बात नहीं। दूसरे चाहे जब्त करते, जान से गुजर जाए, चेहरा साफ करते। इसने तलखी से जवाबी कार्रवाई की थी। समान अहमद सिर्फ मुस्कुराया था। बहुत धीरे से इसके रुखसार पर ठहरे आंसू अपने पूरों पर चुन लिए थे। आप, वो कंफ्यूज से कुर्सी की पुष्ट घाव से लग गई थी। समान की उंगलियों के लम्स ने इसके अंदर एक आग सी बढ़ दी थी। ये मसले का हल नहीं, बस मैंने कह दिया है, मैं नहीं जा रही। अपने चेहरे को दुपट्टे से साफ करते इसने निगाहें चुरा ली थी। समान की कुर्बत इसके हवास को झंझोड़ रही थी। अब के इसने हटीलेपन का मुजाहरा किया था। अंदर की उमड़ते खौफ को इसने इस अंदाज में छुपाया था। चची जान और चचा जान को क्या जवाब दोगी? समान सीधा होकर खड़ा हुआ था। वो तेजी से कुर्सी छोड़कर दीवार के साथ जा खड़ी हुई थी। ये आपका दर्द सर नहीं है, जब वो पूछेंगे तो बात कर लूंगी। समान ने एक दो पल इसे देखा था। समान की निगाहों के इर्तिकाज से वो कंफ्यूज होने लगी थी। समान की मुसलसल मौजूदगी इसको मुतहविश कर रही थी। तुम्हें इल्म है मैं इस्लामाबाद क्यों गया था? समान खिड़की के पास आ खड़ा हुआ बाहर की तरफ देखते सवाल किया था। जरीश ने उलझकर इन्हें देखा। किसी मीटिंग में गए होंगे? हाँ गया था, मैं ऑफिशियल काम से ही था, मगर अब्बू की खसूसी हिदायत भी थी कि वहाँ उस्मान भाई की रिहाइश में कंस्ट्रक्शन का काम भी देख लूँ। इसी माह के अंदर अंदर सारा काम कंप्लीट हो जाए तो फिर वहाँ शिफ्टिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल हो जाएगा। आप सब इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं? जरीश के लिए ये नई ही नहीं हैरत अंगेज खबर थी। खुश होकर समान भाई हैरान होकर समान को देखा था। हम सब नहीं, सिर्फ मैं और तुम, वो भी तुम्हारे एग्जाम्स के बाद। हाँ, इससे पहले मुझे वहाँ के ऑफिस का चार्ज संभालना होगा। इसके करीब आकर समान ने ये इंकिशाफ किया था। वो हैरत से देखे गई थी। समान आगाह तो कर चुका था, मगर वो समझी थी कि बात आई गई हो गई होगी। और अब मतलब तुम्हें खबर तो है?
आपसे कह चुकी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। इस सिलसिले में आपसे तफसीली बात हो चुकी है। आप मेरे फैसले से आगाह हैं। फिर भी वो बड़ी बरहमी से गोया हुई थी। जरूरी नहीं तुम्हारी हर बेवकूफ़ी पर मुबनी फैसले को माना भी जाए। सामान की संजीदगी में ज़रा फर्क नहीं आया था। आप मुझ पर ज़बरदस्ती करेंगे? वो अच्छी खासी तल्खी से गोया हुई थी। अगर तुम आराम से ना मानी तो फिर शायद ये भी नागज़ीर हो जाए। जरिश ने लब बींच लिए थे। सामान की टोन ही बदल गई थी। इंतहाई संजीदा अंदाज था। देखो जरिश, जैसा तुम चाहती हो वैसा कभी नहीं होने वाला। अव्वल तो अम्मी कभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगी, और अगर कर भी ली तो वो भी इकरार नहीं करेंगी। तुम आराम से अपने एग्जाम्स दो, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं तुम्हें कभी मजीद तालीम से नहीं रोकूंगा। मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी तुम हर हाल में अपनी एजुकेशन मुकम्मल करो। मेरा हर तरह का ताउन तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे न यहाँ और ना इस्लामाबाद कहीं नहीं जाना, कभी नहीं। आप अब के इसने हटीलेपन का मुजाहिरा किया था। जरिश सामान ने तादीबी निगाहों से घूरा था। ज़बरदस्ती की तो बात ही रहने दे। मैं कभी किसी भी ज़बरदस्ती को नहीं मानती। ज़बरदस्ती भी वहाँ मानी जाती है जहाँ कोई किसी ताल्लुक किसी हक को माने, जबकि मैं गहरा ताल्लुक है हमारा तुम्हारा रद्द करने या जुटलाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। सामान ने एकदम इसकी बात काट दी थी। और रही हक की बात, तो तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो, ये हर तरह का हक हासिल है मुझे। ज़बरदस्ती तो बहुत आम सी बात है। जरिश को सामान के इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। जिस तरह पिछले इनके हाँ ना जाने के फैसले को सबने खामोशी से कबूल किया था, वो मुतमईन थी कि इसे अब इसके फैसले से नहीं हटाएगा। मगर अब सामान का अंदाज और तेवर, सामान की बात पर इसके चेहरे का रंग सुर्खी में बदल गया था। मुझे आपसे किसी भी सिलसिले में कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज़ चले जाएं। वो अपनी खजालत इससे तलखी का लपाते में लपेटी थी। गुस्से से कहकर इसका इरादा वहां से वॉकआउट करने का था, जब ही सामान ने इसका हाथ थामकर हल्का सा दबाव डालते इसे अपनी तरफ खींच लिया था। वो इस हफ्तात के लिए तैयार नहीं थी। सीधी सामान के कुशादा सीने से जा लगी थी। आप इसने बड़ी सख्ती से कुछ कहना चाहा था, मगर सामान के मजबूत बाजुओं के हिसार ने इसकी बोलती बंद करवा दी थी। क्या करते हैं आप? छोड़े मुझे। अगले ही पल शदीद मजम्मत की गई थी। क्या बदतमीजी है ये? मैं कहती हूँ छोड़े मुझे। सामान अहमद का गर्म तनफ्फुस इसके रुखसार से क्या छुआ तो वो मचल उठी थी। सामान की गिरफ्त में भरपूर मज़ाहमत की गई थी। जरिश जान, अभी तो मैंने अपने हकूक़ का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया। जरिश की ये घबराहट, शदीद मज़ाहमत मचलना सामान ने बड़ी शरारत से इसे देखा था। आप प्लीज़ मुझे छोड़ दें। वो रो देने को थी। सामान ने अपने बाजू का हिसार हटा लिया, मगर दूसरे हाथ की गिरफ्त इसके बाजू पर जूं की तूं थी। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, चाहे इसे रूनमाई गिफ्ट कह लो या फिर। सामान ने जरिश के खुले सर को बगौर देखा और फिर इसे अपने साथ बिस्तर पर ला बिठाया। बिस्तर पर रखे शॉपिंग बैग में से सुर्ख मखमली केस निकाल लिया था। केस डब्बा खोला तो इसके अंदर बड़े खूबसूरत 2 कंगन थे। सामान ने कंगन निकालकर इसके दाएं हाथ में डाल दिए थे। कैसे हैं पता नहीं, इसने सिर्फ एक नज़र कलाई में जब घुमाते कंगनों को देखा था। यह तो तुम्हारा रूनमाई का गिफ्ट था जो मुझ पर उधार था, मगर तुम्हारे लिए इस्लामाबाद से मैं ये लेकर आया हूँ। सामान ने कोट की जेब से मोबाइल निकालकर इसके हाथ में रख दिया था। मेरे लिए? मगर क्यों? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अगर मुझे मोबाइल चाहिए हुआ तो मैं पापा से कहकर मंगवा लेती। तुम्हें नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो ज़रूरत है भाई। कभी कभार जी चाहता है अपनी बीवी से बात करने को। अब तुम मेके में बैठी हो, जब तक तुम मेरे घर नहीं आ जाती मैं नहीं चाहता ख्वामख्वाह PTCL पर कॉल करके सबको आजिज़ कर दूँ। मोहतरमा, ये मैंने अपनी सहूलत के लिए लिया है। सामान का अंदाज ऐसा था गोया वो किसी नासमझ बच्चे को ब्रीफिंग दे रहा हो। गैर संजीदा अंदाज में भी वो बड़ी संजीदगी थी और कुछ शरारत भी। मगर फिर भी मुझे ये नहीं चाहिए। सिम वगैरह मैं डाल चुका हूँ, ये तुम्हारे पास हर वक्त रहेगा। इसको इस्तेमाल करना है। नंबर्स वगैरह मैंने फीड कर दिए हैं। सामान ने जैसे इसका इनकार सुना ही नहीं था। जरिश का जी चाहा मोबाइल दीवार में दे मरे। वो इस शख्स से कुछ भी नहीं लेना चाहती थी, मगर सामान के आगे इसकी एक भी नहीं चलती थी। सामान की गिरफ्त इसके हाथ पर कमज़ोर हुई तो वो हाथ खींचकर कंगन उतारकर बिस्तर पर पटकते हुए बगैर कुछ कहे कमरे से निकल गई थी। सामान से बचने के लिए इसे एक यही तरीका दिखाई दिया था। इसने सोचा था कि वो किसी से कुछ भी नहीं छुपाएगी, सब कुछ बता देगी, अम्मा, भाभी, नबील भाई को सब कुछ। मगर इस घर में आकर जैसे इसकी ज़बान पर कुफल लग गया था। वो घर आई तो पता चला कि अम्मा रात से ही साजिदा बाजी के यहाँ गई हुई हैं। जिस वक्त वो घर पहुंची, नबील भाई ऑफिस जा चुके थे और भाभी घर की सफाई में मसरूफ थी। नवेरा को यूं सुबह सवेरे ब्रीफकेस समेत आते देखकर वो उलझी थी। सलाम दुआ और हाल चाल के बाद नवेरा थोड़ी देर इनके साथ बातें करती रही। बजाय तो नबीला भाभी को कोई खास बात दिखाई नहीं दी थी, मगर नवेरा का बात करते हुए गुमसुम अंदाज और टूटता तसलसल इन्हें
इन्हें ठटका गया था। इनका ख्याल था कि नवेरा खुद जिक्र करेगी, मगर इसने कुछ नहीं बताया था। खुद से पूछना इन्हें भी अच्छा नहीं लगा था। अम्मा घर पर होती तो और बात थी। अम्मा को आपा के यहाँ 4 दिन लग गए थे। 5वें दिन घर आई तो नवेरा को यहाँ देखकर वो भी इतने दिन से सुनकर हैरान रह गई थी। नबील भाई ने बज़ाहिर कुछ नहीं कहा था, ना पूछा था। नवेरा भी इनके सामने कम ही आती थी, ख्वामखा बात बढ़ेगी। वो अम्मा के आने के मुंतज़िर थे। खैरियत से आई हो? नवेरा के गुमसुम अंदाज ने इन्हें भी हैरान कर दिया था। वो चुप हो गई थी। शारिक ने इतने दिन रहने पर कोई एतराज़ नहीं किया? वो सिर्फ यही कह सकी थी। वो अम्मा की आगोश में सर रखकर अपने ऊपर होने वाली क़यामत का जिक्र खुलकर करना चाहती थी। इन 5 दिनों में ज़ुबैदा चची और बड़ी अम्मा के कितने ही फ़ोन आ गए थे। अता के बाहर से रिफत बाजी की कॉल करके दुख का इजहार किया था। यकीनन इन्हें अम्मा ने यह कहा किया था। रात के खाने के बाद नमाज अदा करके जाए नमाज लपेट रही थी जब अम्मा कमरे में दाखिल हुई थी। अम्मा आप आए बैठे। चादर उतार कर दुपट्टा उड़ते हुए इसने अम्मा को बिस्तर पर बैठने का इशारा किया था। वो बिस्तर पर बैठ गई थी। खुशी से आई होना नबीला भाभी की फराहम की गई मालूमात और नवेरा के अंदाज देखकर वो खासी परेशान हो चुकी थी। इस वक्त इनका इरादा नवेरा से तफसीली बात करने का था। नवेरा दुख से इनके सामने बिस्तर पर बैठ गई थी। मैं आई नहीं, मुझे निकाला गया है अम्मा। नवेरा, अम्मा शिद्दत रह गई थी। ये क्या कह रही हो? इसने तुझे बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था। इतनी जल्दी? अम्मा बेयकीन थी। अम्मा मुझे भी यही दावा था, मगर वो रोना नहीं चाहती थी, मगर आंसू तो जैसे पहले से मुंतजिर थे। बहुत आहिस्ता से गालों पर लड़कते चले गए थे। फिर इसने देर नहीं की थी। इतने दिनों से सह रही थी, अब तो दिल फोड़ा बन गया था। इसने कुछ भी नहीं छुपाया था, हर बात बता दी थी। हाय रजा, ये इसने क्या कर दिया? हाय हाय मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची रुसवा हो गई। अम्मा का दिल ही नहीं ठहर रहा था। बड़ी शिद्दत से रोई थी। लोग बेटियों के सुख और अच्छे मुकद्दर की दुआ मांगते हैं। नवेरा, तू मेरे हाथों में दुआ बनकर सजी थी। कहाँ गलती हो गई हमसे जिसका भुगतान तुझे भुगतना पड़ा है? अम्मा की गिरियाफजारी ने नवेरा को शिद्दत से रोने पर मजबूर कर दिया था। शारिक ने तेरे साथ इतना कुछ कर दिया, मैंने सब्र किया, दिल सख्त कर लिया। तेरे भाई घबरे हुए थे इंतकाम लेने के लिए। मैंने समझाया था। साजिद तो समझ गया, मगर नबील वो तो अब ये सुनकर ही हत्ते से उखड़ जाएगा। तुझ पर तो मैंने सब्र कर लिया था, मगर अपने बेटों पर कैसे करूंगी? हम तो रुसवा हो गए। वो शारिक को अब नहीं छोड़ने वाला। नवेरा सुन ले, वो नहीं संभलेगा। अम्मा का दिल शिद्दत गम से फट पड़ने को था। तूने अच्छा किया, किसी से अभी तक जिक्र नहीं किया। बड़ी आपा समझदार हैं। और जुबैदा भी। तू बिल्कुल चुप रहना, नबील को हवा भी नहीं लगने देना, वरना मार डालेगा शारिक और रजा दोनों को। अम्मा को आने वाले वक्त के होल उठ रहे थे। अम्मा, मैं कैसे जी लूंगी इतनी बड़े इल्जाम लेकर? सीधा साधा मेरे किरदार पर हमला किया है। वो शख्स मुझे देखने का रवदात नहीं रहा और मैं अब इसके घर नहीं जाऊंगी। वो अम्मा का बयान सुनकर ही उखड़ गई थी। तू क्या करेगी? रुसवा हो जाएंगे हम। नवाज भाग गया है, हमने सब्र कर लिया। शारिक ने जबरदस्ती की, मैंने बेटों को समझा लिया। अब ये मामला मर्द इस मामले में पर बड़ी गैरतमंद होते हैं। नबील के गुस्से को तो तू जानती है, वो शारिक से किसी तौर कम नहीं, वो मार डालेगा। तू ये भी तो समझ। नवीरा खामोशी से अम्मा को देखे गई। तू चुप रहेगी? नबीला से भी जिक्र नहीं करेगी, मैं संभाल लूंगी। जुबैदा के पास जाऊंगी, बात करूंगी हमीद से कि वो बेटे को समझाए। तीनों माँ बाप और रजा को लेकर जाऊंगी शारिक के पास। हमेशा से उल्टी मत वाला है, खुदा अकल दे। अब ऐसी भी क्या कमकली के खड़े खोटे की पहचान ही ना रहे। अम्मा की अब हवास संभल गए थे। इन्हें आने वाले वक्त की फिक्र थी। अम्मा, मैं अब इस शख्स के घर नहीं जाऊंगी। मुझे एक दफा निकाल चुका है। इसने पहले मेरे साथ जो भी किया मैंने बर्दाश्त कर लिया। एक समझौता करते हुए खुद को इसकी बीवी बना लिया। गुस्सा अपनी जगह, मगर कभी बददियांती का सोचा भी नहीं। और अब इसने सिर्फ मेरे किरदार पर चोट लगाई है। रजा से मुझे कोई गिला नहीं, वो बहक गया। मगर शारिक जमान, इसने मुझे बदकिरदार तक कहा है और मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। नवेरा के लहजे में सख्ती थी। अम्मा ने संभल कर इसे देखा। यानी रुसवाई और बर्बादी इनके घर में आने वाली थी। नहीं नवेरा, तू चुप रहेगी। ये देख मेरे हाथों को, तू नहीं बोलेगी। नवेरा अम्मा की आगोश में मुंह छुपाए फूट फूट कर रोई थी। जहाँ इतने दिन सब्र कर लिया है, वहाँ चंद लम्हे और सब्र कर ले। मैं बात करूंगी, समझाऊंगी रजा को और शारिक दोनों को। अम्मा को एक मुहिम से उम्मीद थी। नवेरा ने सिसकते लब दांतों तले दबा लिए थे। वो यूं ही टूट कर नहीं बिखरी थी। एक मुहिम सी आस होती तो वो घर कभी ना छोड़ती। शारिक से लाख इख्तलाफात तो बहुत सही, मगर इस सूरत में तो कभी भी नहीं कि ये इसके किरदार का सवाल था। मगर अम्मा को कैसे समझाती कि अम्मा को न जाने कौन सी मुहिम आस थी।
لیکن وہ آس توڑ کر یہاں تک پہنچی تھی۔ تم اکیلی ذات ہوتی تو شاید میں سوچتی بھی اس بچے کے ہوتے ہوئے اب بہت سی باتوں کو خیال کرنا پڑے گا۔ نویرا، تم ابھی جذباتی ہو رہی ہو، ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ بچے کی آئندہ زندگی پر بہت اثر انداز ہوگا۔ لوگ کبھی حقیقت نہیں دیکھتے، وہ بات کرتے ہیں، چاہتے ہیں چاہے اس الزام سے کسی کا خون ہو جائے۔ اماں، بہت مشکل ہے اب نباہ کرنا، میں ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ تو پھر اس بچے کا کیا نام دو گی؟ اور اگر شارق نے اس بچے سے انکار کر دیا تو؟ نہیں اماں، شارق بچے کی حقیقت کو مانتا ہے، شک تو میرے کردار پر ہوا ہے، مگر اسے اپنا بچہ نہیں دوں گی، بیٹا ہو یا بیٹی، میں اسے نہیں دوں گی، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی، بھلے وہ ساری عمر مجھے نہ چھوڑے۔ آپ آزاد ہیں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، اور اگر شارق نہ مانا تو میں کبھی بھی مجھے اس گھر میں جانے پر مجبور نہیں کر، میں نہیں جاؤں گی وہاں، میں کل ہی زبیدہ کے پاس جاتی ہوں۔ اماں نے جیسے اس کے فیصلے کو کوئی اہمیت ہی نہ دی تھی۔ نویرا نے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، وہ جانتی تھی شارق زمان پتھر بن چکا ہے، پتھر کب پگھلتے ہیں بھلا؟ اور رضا کے تصور سے ہی سے اپنا پورا وجود نفرت کی شدت سے نیل و نیل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ پاپا نے سنبھلنے کے بعد اسے اپنے پاس بلوا کر اس کا آئندہ کا پروگرام پوچھا تھا۔ وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی اور اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ اس نے سعود احمد اور شائستہ کے سامنے بھی وہی باتیں دہرا دی تھی جو وہ زباریہ بھابی اور سامان کے سامنے کہہ چکی تھی۔ شائستہ کو زرش کی یہ بیوقوفی لگ رہی تھی، مگر سعود احمد نے ان کو خاموش کروا دیا، زرش کو خوش رکھنے کی تاکید کی تھی، اس یقین و بھروسے کے ساتھ کہ اس فیصلے کو اہمیت دی جائے گی۔ سامان احمد سے متعلق اس پر کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ کالج سے مسلسل غیر حاضر ہونے اور کالج چھوڑنے کا فیصلہ بھی اس نے ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس پر سعود کو اعتراض تھا، اس میں انہیں زرش کی حماقت دکھائی دے رہی تھی، مگر زرش نے ان کو منا کر یہ دم لیا تھا۔ اس نے کالج چھوڑ کر اکیڈمی جوائن کرنے کی فرمائش کی تھی۔ لاچار سعود احمد کو یہ بات بھی ماننا پڑی تھی کہ ایک غلط فیصلے کی وجہ سے وہ اب اپنی طرف سے زرش کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ساتھ کے ساتھ رشتہ طے کرنے کے بعد وہ اب کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ 3 بیٹیاں ہی تو ان کے کل کائنات تھی، سرمایہ زندگی تھا۔ زرش کے ساتھ جو اب تک ہو چکا تھا، وہ اب جواباً اس کا جو بھی رد عمل تھا، اس سب کو برداشت کرنا تھا۔ اس نے پاپا سے اجازت ملتے ہی سائرہ کو کال کی تھی۔ اس کے ریفرنس سے نواز فاروق سے بات کر کے اس نے اکیڈمی جوائن کرنے کی بات کی تھی۔ سائرہ اس کے بارے میں کسی حد تک باخبر تھی۔ زرش کو کالج چھوڑ کر ان دنوں اکیڈمی جوائن کر لینے پر اس نے زیادہ کوریدا نہیں تھا، ویسے بھی وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ تاہم زرش نے اسے سرنواز یا اکیڈمی کے کسی اور فرد سے اس کی شادی کا ذکر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے مسکرا کر حامی بھر لی تھی۔ ماما پاپا سے بات کرنے کے بعد کے 2 دن بعد ہی اس نے اکیڈمی جوائن کر لی۔ سامان احمد فرح کو پتہ چلا تو دونوں ہی چپ ہو گئے تھے۔ فرح تو ایک طرف، زرش نے سامان سے ذکر تک کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ یک طرفہ سارے فیصلے کر لینا سامان احمد کو دکھ دے گیا تھا، مگر وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اسے روک سکتے، سو خاموشی سے اس کے فیصلے کو اہمیت دی تھی۔ اب زرش کو کچھ بھی سمجھانا اور منوا لینا ناممکن سا ہو چکا تھا۔ صبح اور دوپہر کا سارا وقت وہ گھر میں ہی گزارتی تھی۔ یاسمین سے کوئی کام کروا لیا، اپنی اسٹڈیز کر لی۔ آج کل پاپا آفس جا رہے تھے، نوشی یا ہدیہ کا فون آ گیا تو گپ شپ لگا لی۔ 3 بجے کے قریب ڈرائیور اسے اکیڈمی چھوڑ آتا ہے، شام تک ویسے واپسی ہوتی تھی۔ اس دن وہ اکیڈمی سے گھر آئی تو ماما نے اسے تیار ہونے کو کہا تھا۔ کیوں خیریت؟ پنک ساڑی، ہلکی پھلکی گولڈ کی جولی میں ماما بڑی زبردست لگ رہی تھی۔ ماما خاص اہتمام کبھی کبھار ہی کرتی تھی۔ تمہیں بتایا تھا نا، زیدی صاحب کے صاحبزادے کی شادی ہے، آج دعوت ولیمہ ہے، پوری فیملی مدعو ہے۔ کل تمہارے پاپا چلے گئے تھے، مگر آج مجھے اور تمہیں ہی چلنے کو کہہ دیا ہے، اور جانا بھی چاہتے ہیں۔ خاندان کا معاملہ ہے، چھوٹ تو کہیں بھی نہیں۔ اچھا، زیدی صاحب ددیالی رشتہ دار بھی تھے اور یہ ان کے تایا بھی لگتے تھے۔ کار تو کافی دنوں سے آیا ہوا تھا، کل بھی ماما نے ذکر کیا تھا، مگر اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ اور اب ماما میرا موڈ نہیں ہو رہا، آپ لوگ چلے جائیں پلیز۔ بری بات زرش بیٹے، جانا تو سبھی کو ہے نا، اس وقت فیملی میں 3 ہی تو فرد ہیں۔ ماما میرا جانا اتنا لازمی نہیں ہے، پلیز مجھے فورس نہ کریں۔ شائستہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ اکتاہٹ اور بیزاری سے بھرپور تاثر لیے ہوئے تھی۔ وہ زندہ دل، خوشی اور ہنگامے کے بہانے ڈھونڈنے والی زرش کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے اندر کے ملال گہرا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے نے اسے کیا بنا ڈالا تھا۔ نہیں، تم جا رہی ہو، تیار ہو جاؤ، میں دیکھتی ہوں تمہارے پاپا کو، وہ تیار ہوئے ہیں کہ نہیں۔ ان کے حکمی انداز پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ یہ شادی پاپا کے کسی فرینڈ کے بیٹے کی ہوتی تو وہ انکار نہ کرتی، مگر اب خاندان میں کسی تقریب پر جاننے والا ہوگا، ہر کوئی جاننے والا ہوگا، جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی۔ یقیناً پھپھو اور تایا کی فیملی میں مدعو ہوگی، اور شاید کیسرا بیگم کی بھی
اس کے اندر کا تناؤ بہت بڑھ گیا تھا. پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑے گا. ماما پاپا کے ساتھ وہ میرج ہال پہنچی تھی. آج ڈرائیور کی بجائے پاپا کے کہنے پر اس نے خود ڈرائیونگ کی تھی. ڈرائیونگ اس نے لاسٹ ایئر سیکھی تھی، مگر خود سے کار ڈرائیو کرنے کی پرمیشن پاپا ماما اسے نہیں دیتے، کبھی کبھار ہی دیتے تھے. وہ ڈرائیور کے ساتھ ڈرائیونگ کرنے کا موقع حاصل کر پاتی تھی تو کافی محتاط اور دھیمی رفتار میں ڈرائیو کرتی تھی. آج بھی پاپا نے اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے اس سے خود ڈرائیو کرنے کو کہا تھا. اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر ان کا دھیان بٹانے ڈرائیونگ کے رولز بتاتے رہے تھے، جبکہ ماما پچھلی سیٹ پر تھی. اور جب وہ لوگ میرج ہال پہنچے اس کا موڈ بہت فریش ہو چکا تھا. یہ پاپا کے اعتماد اور گفتگو کا نتیجہ تھا. وہ اندر ہی اندر معترف ہوئی تھی. وہاں پپو، ہادیہ اور جمال ماموں تھے، جبکہ وقار بھائی نہیں تھے اور لاشعوری طور پر تایا کی فیملی کے افراد کو تلاش کر رہی تھی. مزید 15 منٹ تک وہ لوگ دکھائی نہیں دیا تو وہ کچھ ریلیکس ہو گئی. میرج ہال میں گہما گہمی تھی. ماما پاپا دیگر لوگوں سے ملنے کو چلے گئے تھے. زریش سعد کا فون آیا تھا. اچانک باتوں کے دوران آپا نے کہا تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی. وہ اس گھر کا بیٹا ہے، ایسا تعلق ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. ہر روز کال کر رہا ہے، معافیا مانگ رہا ہے، مگر پھپھو اور ماموں اس سے کوئی بات نہیں کر رہے. بے شک تمہاری شادی سامان سے ہو گئی ہے، مگر اس فراڈ سے ہم نے جو برداشت کیا ہے اس کو کیسے بھلا دیں؟ آپا کا لہجہ آزاردہ تھا. وہ لب بھینچ گئی تھی. اب کیا فائدہ ان باتوں کا، چھوڑیں. اپنے آپ کو بحال کرنے کے لیے اس نے کہا تھا. وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر مجھ سے اس سے کوئی بات نہیں کرنی. اور پلیز اب آپ ایسا کوئی ذکر نہیں کریں گی، خاص طور پر اس کا تو بالکل نہیں. زریش کا انداز دو ٹوک تھا. آپا چپ چاپ زریش کے چہرے کو دیکھے گئی تھی. تھوڑی دیر بعد تایا کی فیملی ہال میں داخل ہوئی تو زریش کے اندر فرح اور علی کے ہمراہ اندر آتی طاہرہ بیگم کو دیکھ کر ایک آگ سی دہک اٹھی تھی. تایا، ابو اور سامان احمد ساتھ تھے. زریش نے رخ موڑ لیا تھا. اتنے دن گزر جانے کے باوجود یہ سب اب بھی ناقابل برداشت تھا. دل چاہ رہا تھا کہ کسی حد سے گزر جائے. السلام علیکم. فرح اور علی کی آواز پر اس کا سر جھکا ہوا تھا. اس نے بڑی زخمی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا تھا. گود میں دونوں ہاتھ رکھے اسی بے تاثر انداز میں بیٹھی ہوئی تھی. فرح کے اندر ملال ہونے لگا تھا. ہاتھ ملانا تو ایک طرف، زریش نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا. کیسی ہیں بھابھی صاحبہ؟ علی اس کے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھا تھا. اس کو دیکھنے پر لگا ہوا تھا. پھر اسٹیج پر براجمان دولہا دلہن پر نگاہیں جما دی. او ہو، بڑی سخت ناراضگی ہے، اس نے کہا تو فرح نے اسے گھورا تھا. سنو، سامان بھائی بھی آئے ہیں، ادھر چچا جان کے پاس کھڑے ہیں، دیکھو تو صحیح. تم چپ نہیں بیٹھ سکتے؟ اس نے غصے سے علی کو دیکھا تو وہ ہنس دیا. نہیں، اٹھو، یہاں بیٹھ کر بور ہو رہی ہو، چلو آؤ تمہیں کسی سے ملواتا ہوں. ہنس کر کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا. زریش نہ کرتی رہ گئی. وہ بغیر اس کی سخت احتجاج اور غصے کی پرواہ کیے اسے ساتھ گھسیٹ لایا تھا. اچھا ان سے ملو، یہ ہیں میرے پیارے سویٹ سے بھائی جان. علی کے انداز میں بلا کی شرارت تھی. اس کو بالکل سامان احمد کے سامنے لا کر کھڑا کرتے ہوئے اس نے جس قدر شرارت سے کہا تھا، اس کا دل چاہا علی کا حشر نشر کر دے. السلام علیکم. سامان نے علی کے انداز پر اسے گھور کر اور پھر زریش کو دیکھا تھا، جو بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پا رہی تھی. کیسی ہیں؟ سلام کا جواب نہ پا کر اگلا سوال کیا کر. ٹھیک ہوں. لٹھمار انداز تھا. سامان نے ایک گہری سانس لیا. علی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، جیسے سر سمیت وہ اپنا غصہ پی رہی ہو. اس نے ایک نظر ڈال کر سامان احمد کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا، جبکہ سامان احمد نے اس پر ذرا تفصیلی نگاہ ڈالی تھی. بلیک نگوں سے مزین، بڑا خوبصورت جگمگا رہا تھا. پہلے سوٹ پہنے، لائٹ سے میک اپ، کھلے بال اور ہلکی ہلکی جوڑی میں خاصی چمک دمک لگ رہی تھی. سامان کے اندر آسودگی کی لہریں پھیلی تھی. خاص طور پر اس کے ہاتھ میں موجود اپنے دیے کے کنگن دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی. وہ لاکھ بے اتنائی برتتی تھی، مگر ایک بڑا گہرا اور واضح تعلق تھا. وہ ناراض تھی، ضدی تھی، مگر ان کے دل میں بستی تھی. اپنے آداب و انداز لیے اس کی نگاہوں کو اچھی لگی تھی. بڑا مضبوط رشتہ تھا. وہ کہاں تک انکار کرے گی؟ جا رہی ہوں اکیڈمی. سامان کے استفسار پر اس نے سر اس بات میں ہلا کر ارد گرد دیکھا تھا. علی وہاں سے کھسک چکا تھا. دونوں اس وقت ذرا ہٹ کر سنسان پرسکون گوشے میں کھڑے تھے. آمد و رفت تو تھی، مگر زریش سے کم، رس سے کم تھی. نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا. تایا، ابو، ماما، پاپا، پھپھو وغیرہ کے ٹیبل پر نظر آئے تھے، جبکہ فرح اور طاہرہ قدرے فاصلے پر مہمانوں کے ساتھ براجمان تھی. طاہرہ بیگم اسی جانب دیکھ رہی تھی. ان کی آنکھوں سے نگلتی تپش زریش کے اندر کا
اضطراب بڑھا گئی تھی۔ کالج کا کیا بنا؟ پاپا نے پرنسپل سے بات کر لی ہے، اٹینڈنس کلیئر ہو جائے گی، تلخی سے بھرپور آواز میں زرش نے جواب دیا تھا، اور ایگزامز جب ڈیٹ شیٹ آئے گی تو پھر دے دوں گی۔ چلو آؤ ادھر بیٹھتے ہیں۔ سامان نے قریبی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تو اس نے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ نہیں، میں ماما پاپا کے پاس جا رہی ہوں، چلو میں بھی چلتا ہوں۔ سامان نے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھائے تھے۔ سامان کے ہمراہ چلتے ہی سے کئی نگاہوں کا مسلسل اپنے اوپر ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ السلام علیکم تایا ابو۔ قریب آ کر اس نے سلام کیا۔ تایا ابو نے اتنی بڑی محبت اور شفقت سے ساتھ لگایا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ جی بہتر ہوں، اس نے مختصراً کہا تھا اور پھر ہادیہ کے پاس خالی چیئر پر جا بیٹھی تھی۔ ماما پاپا پھپھو ماموں اور تایا کے درمیان خاندان کی باتیں زیر بحث تھی۔ خاندان کی تقریب میں ملنا ملانا تو رہتا ہی تھا، غصہ اپنی جگہ، مگر منہ سے سلام دعا کا دستور تو پرانا ہے۔ طاہرہ اگر ملنا نہیں چاہتی تو پھر ایسی جگہوں پر آیا بھی نہ کرے، سگی بھابھی ہے، یوں غیروں کی طرح جب سلوک کرتی ہے تو پھر دل دکھتا ہے۔ نہ جانے کیا بات تھی چل رہی تھی، اچانک پھپھو نے بات کی تھی۔ زرش چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ چھوڑے آپا، اب یہ قصہ بڑا پرانا ہو گیا ہے، اگر اس کے اندر دنیا داری کا اتنا ہی احساس ہوتا تو بات یہاں تک نہ پہنچتی کیسے؟ تایا ابو نے بڑی تلخی سے کہا تھا۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، مگر سعود تم یہ بتاؤ، زرش کب تک ادھر رہے گی؟ شادی کے بعد لڑکیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ پھپھو کے ایک دم کہنے پر زرش نے گھبرا کر پہلے سب کو دیکھا اور پھر سامان کو۔ سامان بھی ادھر ہی متوجہ تھا۔ زرش نے فوراً نگاہیں چرا لی تھی۔ ہماری طرف سے کوئی انکار نہیں، سامان آپ کے سامنے ہے، پوچھ لیں اس سے، میں تو ہر طرح کا آپشن دے چکا ہوں، سعود سے بھی بات کر چکا ہوں۔ سامان زرش کو اسلام آباد لے جائے گا، بے شک کل ہی، میری طرف سے کوئی دیر نہیں۔ یہ تو مسئلے کا کوئی حل نہیں، اسلام آباد کیوں؟ یہاں اپنے گھر میں کیوں نہیں؟ تم ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں بیاہ کر لائے تھے، اصولی طور پر اب طاہرہ کو پچھلے حوالے بلانے چاہیے تھے، تاکہ یہاں سب نے بلا کر ہی زرش کو سامان کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ اکیلا ہی گھر بسانا ہوتا تو ہم خاندان میں کہیں اور دیکھ لیتے۔ زرش نے بڑی بے چینی سے پہلو بدلا۔ سب کی موجودگی میں پہلی دفعہ یہ موضوع چھڑا تھا، وہ بھی ان دونوں کے سامنے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ طاہرہ خود کبھی زرش کو لے کر جانے والی نہیں اور نہ زرش اس گھر میں جانے پر آمادہ ہے، تو پھر یہ درمیانی راہ ہی رہ جاتی ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مجھے ابھی فرح کی شادی کرنی ہے، میں لگا ہوا ہوں کوئی اچھا رشتہ دیکھنے، ادھر سے فارغ ہو کر پھر میں سارے مسئلے کا حل دیکھوں گا، تب تک زرش کا کیا بنے گا؟ سعود احمد شائستہ مسلسل خاموش تھے۔ پھپھو نے ہی سوال اٹھایا تھا۔ پھپھو، زرش پہلے ایگزام سے فارغ تو ہو لے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا، سامان نے کہا تو چند پل کو سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ آپ آئے، یہ کوئی مناسب جگہ نہیں، اس قصے کو چھیڑیں گھر جا کر بھی تو بات ہو سکتی ہے۔ سعود احمد نے زرش کے بھنجے ہونٹ دیکھ کر سرے سے قصہ ہی ختم کر دیا تھا۔ پھپھو نے بھی بات بدل دی تھی۔ ان کے بعد ان کے درمیان کوئی اور موضوع شروع ہو گیا تھا، مگر زرش اس موضوعی گفتگو سے جس اذیت کا شکار ہوئی تھی وہ پھر دونوں پر پرسکون نہ ہو سکی تھی۔ تایا ابو اٹھے تھے تو باقی بزرگ بھی ادھر ادھر ملنے ملانے کو چل دیے تھے۔ وہ اس ماحول سے سخت اذیت سے دوچار تھی۔ آپا میں آتی ہوں ذرا۔ آپا کسی جاننے والی سے مصروف گفتگو ہو چکی تھی، انہوں نے صرف سر ہلایا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ہال کی کلاس وال کی طرف چلی گئی تھی۔ کلاس وال سے باہر طرف بنے گارڈن کا منظر بڑا خوبصورت تھا۔ کیا بنے گا اس سارے قصے کا؟ کیا ماما پاپا مجھے سب کے کہنے پر واقعی سامان کے گھر رخصت کر دیں گے؟ اس سوال نے اس کے اندر ادھر مچا دیا تھا۔ دیکھو ذرا، یہ سعود احمد کی بیٹی ہے نا؟ اپنی آنکھوں کی نمی کو انگلیوں سے چھوتے وہ چونکی تھی۔ ذرا ساتھ ہو کر دیکھا، ذرا فاصلے پر ٹیبل کے گرد بیٹھی خواتین میں سے کسی کی آواز تھی۔ ہاں وہی ہے، دوسری عورت نے تصدیق کی تھی۔ زرش کو یہ دیکھے والے چہرے لگے تھے، مگر زیادہ جانتی نہ تھی کہ کون خواتین۔ وہی نا جو سعید احمد کے بیٹے سامان کے ساتھ رخصت ہوئی ہے؟ زرش وہاں سے ہٹنے والی تھی کہ آواز نے قدم جکڑ لیے تھے۔ ہاں وہی ہے، میں نے تو سنا ہے صرف رخصتی ہوئی ہے، ہمارے سامنے ہی شائستہ نے رخصت کیا تھا، مگر بعد میں سسرال نہیں گئی۔ حالات بھی تو دیکھو، جن حالات میں رخصت ہوئی تھی، نفیسہ آپا کے بیٹے نے جو کیا وہ کیا۔ وہ تو تایا اچھے تھے جو مرتے بھائی کی عزت کو سہارا دیا، فوراً بیٹے کو پیش کر دیا۔ پھر دونوں کی ماؤں میں ساری زندگی اختلاف رہا ہے۔ طاہرہ کے قصے کون نہیں جانتا؟ جو شوہر کی نہ بنی وہ اولاد کی کیسے برداشت کرتی؟ بیٹے کی خواہش تھی، مگر تم نے سنا تھا
केसरा की ज़बानी क्या क्या ना कह रही थी। समान और जरीश दोनों के बारे में। अल्लाह झूठ न बुलवाए तो सईद अहमद के घर की खराबी की सारी जिम्मेदार भी यही केसरा है। ऐसे में कोई खुशियों के साथ औलाद को रुसवाई में धकेलता है। जरीश साकित से खड़ी रह गई थी, मगर जो किस्से केसरा आपस सुना रही थी वो भी किसी न किसी हद तक सच्चे थे। सऊद अहमद ने कभी अपनी औलाद को हल्का नहीं पड़ने दिया था। नफीसा आपा का बेटा ऐन शादी के वक्त क्यों भागा था, और फिर सऊद अहमद का अस्पताल जाना, फौरन समान के साथ रुखसत करना। अब सारा कसूर ताहिरा का भी तो नहीं हो सकता। सारी उम्र ही तो वो गलत नहीं हो सकती, कोई ना कोई बात तो हो सकती है। देखी होगी ना जो इसने इतनी बड़ी बात की थी। भला अपनी औलाद को भी कोई रुसवा करता है, कोई तो वजह होगी ना। दूसरी औरत कह रही थी। जरीश को लगा पूरे कद समेत वो जमीन में दफना दी जाएगी। वल्लाह आलम, हम क्यों किसी के बेटी पर बहस करें, मगर शाइस्ता को जहाँ तक जानती हूँ इसकी औलाद कभी बड़ी सुलझी हुई और तबीयत की मालिक है। बिल्कुल माँ का प्रत्तु है। यह लड़की कुछ लाडली और कम उम्र है, हो सकता है बातों में आ गई हूँ, मगर जो किस्सा केसरा सुनाती है इसमें यकीन नहीं आता। दूसरी खातून इनकार कर रही थी। हमें क्या, खैर केसरा की अपनी औलाद कौन सा कम है। सुना है अपनी जिस बेटी का रिश्ता वह समान से करना चाहती थी वो अपनी किसी क्लास फेलो के साथ के लिए राजी है, और बेटे को तो माँ के साथ भी कभी बनी नहीं। वो अब केसरा की जात को डिस्कस करना शुरू हो चुकी थी। जरीश ने आंखों में आई नमी को झटका, मगर अंदर जो जवाब बांटा सर उठा चुका था, इस पर इख्तियार खत्म हो गया था। इसे अपनी पूरा वजूद किसी तूफान की जद में गिरा महसूस हुआ था। जरीश, बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से दी जाने वाली पुकार पर इसने तड़प कर सर उठाया था। न जाने समान कब से अकब में आ खड़ा हुआ था। मोतियों से भरी आंखें। समान को लगा दिल में जान बोझ सा पड़ गया है। बड़ी तलखी सी निगाह इस खवातीन पर डाली थी जो हर तरह से बेनियाज बड़ी दिलजमी से किस्से को छेड़ रही थी। समान के दिल का मौसम अजीब खलिफशार का शिकार हुआ था। ऊपर से जरीश की शिकवा कना सर तल्ख निगाहें और सरद से पलटी थी। वहां से बड़ी तेजी से चली गई थी। आपा, मैं घर जा रही हूँ। वो इस वक्त सोचने समझने की सलाहियत से नाबल्द हो चुकी थी। आपा ने हैरान होकर इसे देखा था। जलतल आंखें लिए वो बड़ी शिकस्त खोरदा सी लग रही थी। क्यों खैरियत? मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मामा पापा को कह दीजिएगा मैं घर जा रही हूँ। इसने अपना बैग उठाया। गाड़ी की चाबी इसके पास ही थी। इसने बैग से गाड़ी की चाबी निकाली। वो इस वक्त बगावत पर आमादा थी। इस वक्त कैसे? ठहरो, मैं मामा पापा को बुलवाती हूँ। इन्होंने उठना चाहा तो इसने मना कर दिया। मैं गाड़ी ड्राइव कर लूंगी, रहने दें। वो तेजी से कहकर पलट गई थी। जरीश, ठहरो, रुको तो। वो आवाजें ही देती रह गई, मगर इस पर तो जैसे जज्बात का दौरा पड़ा था। वो सोचने समझने की सलाहियत से नाबल्द हो चुकी थी। या खुदा, इसको तो गाड़ी भी एहतियात से चलाना नहीं आती, कैसे कंट्रोल करेगी? वो परेशान हो गई थी। शाम के करीब खालदा बेगम हुमैद साहब के यहाँ आई थी। जुबैदा बेगम इनकी आमद से खौफजदा हो गई थी। हमीद साहब घर आए तो खालदा बेगम ने सारी बात इनके सामने रख दी थी। हुमैद साहब पहले तो सुनकर शद्दत रह गए थे, और फिर इनके अंदर का इश्तियाल इतना बड़ा कि इन्होंने फौरन रजा को फ़ोन करके घर आने का कहा था। रजा घर पर नहीं था। शाम के करीब वो दोस्तों का कहकर निकल गया था। जुबैदा बेगम शोहर के तेवर देकर हरासा हो गई थी। वो पहले ही रजा की तरफ से इन सब कुछ छुपाए हुए थी। हमीद साहब ने सब सुनकर इन्हें कुछ नहीं कहा था, मगर इनके अंदाजो तेवर ऐसे थे कि वो दिल में सब खैरियत रहे की दवाइयाँ कर रही थी। रजा घर आया तो सामने खालदा बेगम को देखकर ठटका था। जुबैदा का रोया सुर्ख चेहरा, बाप के तेवर और रमशा की गैर मौजूदगी इसे मामले की नौयत समझा देने को काफ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, आपने बुलवाया? मुश्तरका सलाम के बाद इसने बाप को देखा था। इन्होंने गुस्से में टेबल से डायरी और तस्वीरें उठाकर इसे दी थी। ये सब क्या है? रजा खामोश रहा। माँ के सामने दिल की ख्वाहिश बयान करना, नवेरा और शारिक के सामने हकीकत लाना एक तरफ, अब बाप के सामने वो झिझक गया था। वो बर्मिला कुछ भी ना कह सका था। आपा, अच्छा किया आपने किसी से जिक्र नहीं किया। आप बेफिक्र रहें, अब मैं सब संभाल लूँगा। रह गई शारी की बात, ये रजा इससे सारा मामला क्लियर करेगा। नवेरा कोई गैर नहीं, मेरी अपनी बेटी है, आप बेफिक्र रहें। रजा की खामोशी पर इन्होंने इसे कहर आलूर निगाहों से घूरते हुए खालदा बेगम को रिलैक्स किया था। हमीद, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। हम तो अभी तक नवाज के घाव नहीं भूले, ये नई तकलीफ कैसे सह लेंगे? नबील तो सुनकर हत्ते से उखड़ जाएगा। मैंने अभी छुपा लिया है, मगर ख्याल रखना मेरी बेटी जीते जी मर जाएगी। वो बेचारी तो बेकसूर है। खालदा बेगम रो रही थी, जबकि रजा खामोशी से खड़ा था। जुबैदा बेगम ने हाथ थामकर इन्हें दिलासा दिया था, मैं शारिक से भी बात करूंगा। घर ऐसे तो बिखर जाते हैं, ये जज्बाती फैसले सिवाय नुकसान के कुछ नहीं देते। रजा की गलती है, वह कसूरवार है तो फिर सजा भी तो भुगतेगा, मगर नवेरा नहीं। रजा को गुस्सा से
देखते इन्होंने करीब बैठकर इन्हें दिलासा दिया था। खालदा बेगम के चले जाने के बाद इन्होंने रजा को अपने कमरे में बुलवाया था। हाँ तो बरखुरदार, अब बताओ क्या किस्सा है ये? जुबैदा बेगम इनके गुस्से से जितनी खौफजदा थी वो इतने ही पुरसुकून होकर पूछ रहे थे। आपके सामने ही तो सारी बात हुई है। दूसरी तरफ सवाल दोहराए जाने पर इसने कहा था, तुम्हें ये सब सोचते शर्म ना आई? अगले ही लम्हे में वो अपना जब्त खो बैठे थे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, इंतहाई बेखौफी से कहा गया था। देख रही हो तुम, इतना कुछ हो चुका है इस घर में और तुमने मुझे हवा भी नहीं लगने दी। इन्होंने तिलमिलाकर जुबैदा बेगम पर तो तोप दाग दी थी। अल्लाह ने एक औलाद दी, वो भी ऐसी। इससे बेहतर है कि अल्लाह बे औलाद रखता। कम से कम आज इस शर्मिंदगी से तो बच गया होता। इसका तहत से बुरा हाल था। तुमने शारिक से क्या कहा था? यही कि मैं नवीरा से शादी करना चाहता हूँ, जो कि सर से एतराफ़ जुर्म किया गया हूँ मैं। हमीद साहब गम गुस्से से कंग से हो गए थे। ये इतनी छोटी बात तो नहीं थी। कोई भी आदमी किसी भी शख्स के पास जाकर कहे कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे, वो इससे शादी करना चाहते, तो इस मर्द की गैरत का क्या हाल होगा। और अगर मर्द जैसे शारिक जैसे हो तो घर तबाह हो जाते हैं। हमीद साहब के अंदर आतिश फशानी की कैफियत उभरी थी। शर्म ना आई तुम्हें ये सब करते हुए? बेगैरत, बेहया। इसकी भारी हाथ का थप्पड़ रजा के चेहरे 14 तबक रोशन कर गया था। तुमने ये सोचा भी कैसे? मैं जान निकाल दूंगा तुम्हारी। हमीद साहब ने रजा का गिरबान पकड़ते इसे झंझोर डाला था। जुबैदा बेगम दहल कर रह गई थी। उम्मीद साहब की ऊंची आवाज पर मुसलसल अपने कमरे में बंद रिमशा भी डर कर बाहर निकल आई थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। शादी करना कोई गुनाह नहीं होता। हमीद साहब ने किनातोज नजरों से रजा को देखा। जी चाह रहा था कि बस सब कुछ तहस नहस करते। खबरदार, इन्होंने बड़े जोर का धक्का दिया था। वो दीवार के साथ लड़खड़ा गया था। शादी तुम्हारी सिर्फ रिमशा से होगी, कान खोल कर सुनो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाप के तेवरों पर वो भी गुस्से में आ गया था। इसी हफ्ते में तुम्हारी शादी रिमशा से कर रहा हूँ। इन्होंने एकदम गुस्से से फैसला सुनाया था। हरगिज नहीं, मैं ऐसा किसी फैसले को नहीं मानूंगा। बड़े फबरे अंदाज में इसने इनकार किया था। मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे नवीरा का घर बचाना है और इससे पहले तुम्हारी शादी करूंगा और तुम्हें ये बात मानना होगी। मैं घर छोड़ दूंगा। हाँ जरूर। इन्होंने तमस्खुर से इसे देखा था। वो गुस्से से बेकाबू होता इनके कमरे से निकल गया था, मगर जाने से पहले अपनी माँ को भी साथ लेते जाना। रजा हमीद के कदमों में गोया जंजीर से पड़ गई थी। वहीं जुबैदा बेगम ने तड़प कर बेतासुर चेहरा लिए अपने शोर को देखा था। रिमशा भी खौफ से जर्द हो गई थी। मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों निकाल रहे हैं? वो तड़प कर इनके सामने आई थी। इन्हें इसी बात का डर था और ये हो गई थी। मैं सिर्फ निकालूंगा ही नहीं, अपने बेटे को कह दो वो इस घर से निकलने के बस हर ताल्लुक ही तोड़ दूंगा। नवीरा बर्बाद होगी तो तुम्हें भी तलाक होगी। जुबैदा बेगम को लगा वो लहरा कर गिर से जाएंगी। इन्होंने बेयकीनी से दीवार का सहारा लिया था। रजा ने लब भींच कर रुख बदल कर बाप को देखा था। इसमें अम्मी का कोई कसूर नहीं तो नवीरा का भी कोई कसूर नहीं। जुबैदा बेगम फूट फूट कर रो रही थी। ठीक है, मैं नवीरा का ख्याल दिल से निकाल देता हूँ, मगर रिमशा को किसी सूरत भी नहीं अपनाऊंगा। बाप की ब्लैकमेलिंग पर वो अपने गुस्से जज्बात के फफड़े तूफान को रोकते गोया हुआ था। तुम्हें मेरी दोनों बातें मानना होंगी। इनके लहजे और अंदाज में जरा रियायत ना थी। हरगिज नहीं। वो फिर फबर उठा। तो फिर ठीक है, मैं हमीद हुसैन अपने पूरे होश आवाज में तुम्हारी माँ जुबैदा को अंकल प्लीज। रिमशा तेजी से इनके करीब आकर इनके मुंह पर हाथ रखकर सिसक उठी थी। हमीद साहब के बाकी अल्फाज इनके मुंह में ही रह गए थे। नहीं फूफा जान, नहीं। वो बुरी तरह रो पड़ी थी। जुबैदा बेगम का वजूद गोया पत्थर का बन गया था। रजा हमीद बेहवास हो गया था। वो समझ गया था हमीद साहब सिर्फ धमकी दे रहे हैं, मगर जबकि अंकल मुझे रजा से शादी नहीं करनी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, फुप्पो को कुछ ना कहे प्लीज अंकल प्लीज। वो रोते रोते इनके कदमों में गिर गई थी। जुबैदा बेगम के पत्थर वजूद ने भी हरकत की थी। वो जमीन पर गिरती चली गई थी। फुप्पो, अम्मी। जुबैदा बेगम को यूं हवास खोते देखकर दोनों ही चीखते हुए इनकी तरफ बढ़े थे। हमीद साहब भी हारते हुए जवारी की तरह बिस्तर के किनारे टिक गए थे। हादिया ने सामान को बुलवा कर बताया कि जरिश घर चली गई है। रात के इस पैर इसका यूं गाड़ी लेकर जाना सामान को भी तशवीश लाक हो गई थी। गाड़ी की चाबी इसे क्यों दी थी? आज गाड़ी वही ड्राइव करके मामा पापा को साथ लाई थी। सामान को रह रहकर इसके आंसुओं से बड़ी शिकवा करान नजरें याद आ रही थी। सामान ने इसके नंबर पर कॉल की, मगर इसने रिसीव नहीं की। इस वक्त वो बेड पर टेबल पर ही बैठा हुआ था। खाने का दौर चल रहा था। सऊद अहमद हैंड वॉश करने उठे तो इसका मोबाइल बजने लगा जो टेबल पर ही था। सामान ने स्क्रीन देखी तो सरिश का नाम देखकर फौरन कॉल रिसीव। पापा मुझसे एक्सीडेंट हो गया, प्लीज जल्दी से आ जाएं। घबराई रोती आवाज से सामान एकदम उठ खड़ा हुआ था। बाकी लोग भी मुतवज्जा हुए थे। सामान को एहसास हुआ तो मुस्कुरा कर सबको तसल्ली देते वहां से निकल आए। कहाँ हो तुम और कैसी हो? गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो गई थी, मुझे पता नहीं चला। प्लीज पापा आ जाए, ये लोग बहुत बदतमीज हैं, प्लीज पापा, वरना ये लोग पुलिस को बुलवा लेंगे। सामान को बुरी तरह रोती जरिश के अलावा बहुत सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी, यानी सूरत हाल शदीद नौयत की। तुम ठीक हो ना? आप आ जाए बस। वो बुरी तरह रो रही थी।
तुम जो है वकूआ बताओ, मैं बस आता हूँ। इस ने इलाके का बताया तो सामान फौरन पलटा। चचा को मोबाइल पकड़ा दिया। सूरत हाल समझाने का वक्त नहीं था। वो तेजी से बाहर निकल गया। न जाने वो अहमक लड़की क्या कर चुकी थी। सामान ने बड़ी रैश ड्राइव की थी। वो 10 मिनट में जय कुआ पर पहुंचा था। इर्द गिर्द बेपनाह हुजूम इकट्ठा था। सामान गाड़ी खड़ी करते हुजूम चीरते फौरन आगे बढ़ा था। अमीर होगी तो अपने घर में होगी, एक गाड़ी में क्या बैठ जाते हैं, दुनिया को रोंदने का हक समझ लेते हैं। वो जो कोई भी था इंतहाई बदतमीजी से मुखातिब था। डरी सहमी मुसलसल रोती जरीश गाड़ी के दरवाजों को लॉक किए, शीशा चढ़ाए, अंदर खौफ ज़्यादा बैठी हुई थी। जरीश शीशा बजाने पर इसने सामान को देखा। वो जैसे नए सिरे से जी उठी थी, एकदम लॉक खोलकर बाहर निकली थी। आप प्लीज मुझे बचा लें, ये लोग पुलिस के पास लेकर जा रहे हैं। इसने रोते हुए सामान का बाजू थाम लिया था। सामान का गुस्सा इसकी कंडीशन देखकर कतरे कम हुआ था। हम ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले। अमीर होगी तो अपने घर में होगी, एक तो अंधों की तरकारी के नीचे दे दिया, ऊपर से कोई परवाह भी नहीं। कॉल की है मैंने पुलिस को, आ रही है बस। शट अप। इतने बदतमीजाना अंदाज पर सामान ने गुस्से से इस आदमी को देखा। 35 साल के लगभग का आदमी था, जिसके सर से खून बह रहा था, जबकि इर्द गिर्द किसी शदीद नुकसान का अंदाजा नहीं हो रहा था। सामान समझा कि एक्सीडेंट ज्यादा शदीद है। हाँ, जमीन पर पड़ी बाइक अच्छी खासी मुतासिर हो गई थी, और शायद गाड़ी भी। आपको खवातीन से बात करने की तमीज नहीं? तुम कौन होते हो खुदाई फौजदार? वो मजीद बदतमीजी से बोला। क्या लगती है तुम्हारी बड़े आए तमीज सिखाने वाले? बकवास बंद करो, बीवी है मेरी, जो भी हर्जाना है मैं अदा करने को तैयार हूँ, मगर बात तमीज से करो। सामान के एकदम गुस्से से कहने पर जरीश मजीद डर गई थी। बीवी है तो घर में लगाम डालकर रखो। वो कोई सरपीरा शख्स था और यूं सामान गुस्से से आगे बढ़ा था। जरीश ने दहल कर सामान का बाजू तो पूछा। नहीं प्लीज नहीं। इतने हजूम में वो बेहवास सामान से चिपकी हुई थी। तुम चलकर गाड़ी में बैठो, मैं देख लेता हूँ। सामान ने इसे झटका। वो डर कर पीछे हटी थी। पुलिस के आने से पहले तो मुलजमा को कहीं नहीं पका सकते। वो शख्स घबरा हुआ था, इसके सर से खून बह रहा था, इसके सफेद कमीज सुर्ख रंग हो चुकी थी। सामान ने अपने ऊपर काबू पाया। मैं हर्जाना अदा करने को तैयार हूँ, इसके बावजूद अगर तुम पुलिस तक बात ले जाना चाहते हो तो एज यू विश। सामान ने अपनी जेब से अपना वॉलेट निकाला। इस शख्स का नुकसान हुआ था, मगर इसकी बात करने के अंदाज ने सामान को गुस्सा दिलाया था। 50,000 की गाड़ी थी मेरी, इस शख्स ने कहा तो सामान हाथ में पकड़ी अपनी गाड़ी की चाबी इसकी तरफ बढ़ाई, और साथ ही अपना विजिटिंग कार्ड भी और चंद नोट भी। वो मेरी गाड़ी खड़ी है, नया मॉडल है, कल इस एड्रेस पर आ जाना, तुम्हें बाइक मिल जाएगी। तब तक जमानत के तौर पर अपनी गाड़ी तुम्हारे पास रखो, और ये चंद हजार भी डॉक्टर को दिखा देना, बल्कि मेरे साथ चलो, मैं अस्पताल ले चलता हूँ। धीमे अंदाज में कहने पर इस शख्स ने गुस्से से हटकर सामान को देखा। वो शायद हालात का सताया हुआ था। अपनी बाइक के नुकसान पर वो कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया था। सामान की बात और ऑफर ने इसे अपने ऊपर काबू पाने पर मजबूर कर दिया था। चंद मिनट बहस मुबासे और गुफ्तगू के बाद इर्द गिर्द मौजूद लोगों इस शख्स को धीमा पड़ने पर वहां से हटना शुरू कर दिया। नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे बाइक का दुख हो रहा है, कर्जा लेकर खरीदी थी। वो शख्स अब गाड़ी को सीधा करते एक तरफ हुआ था। सामान ने इस शख्स से हटकर जरीश को देखा तो चौंका। जरीश की कलाई से खून बह रहा था, बल्कि दाएं बाजू भी जख्मी था, आस्तीन फटी हुई थी। तुम जख्मी हो? वो सिर्फ सारी लागे थी। सामान ने ताज्जुब से इसे देखा था। सहारा देकर इसे गाड़ी तक लाया था। खड़ी तो वो थी, मगर चलना महाल हो गया था। शायद पाँव में भी चोट आ गई थी। फ्रंट सीट पर बिठाकर इस आदमी को गाड़ी में बैठने का इशारा करते वो जरीश की गाड़ी में आ बैठा था। इसका बैग और मोबाइल वैसे ही पड़ा था। इन दोनों चीजों को उठाते सामान की निगाहें डैशबोर्ड की तरफ उठी थी। ठटक गया। सामान के दिए गए दोनों कंगन और एएस के अल्फाज से मुज़य्यन लॉकेट बेदर्दी से फेंके गए थे। सामान ने उठाकर बैग में डाला, गाड़ी एक तरफ पार्क करके लॉक की, और फिर गाड़ी में आ बैठा, दूसरी गाड़ी में आ बैठा। रास्ते में जफर को फोन करके इसने क्लिनिक में मौजूदगी कंफर्म करवा ली थी। बाकी सारा वाकया, सारा रास्ता वो शख्स खामोश रहा था। सामान ने ही इससे चंद सवाल किए थे। जफर इसका मुंतजिर था। सामान ने एक्सीडेंट का बताकर ट्रीटमेंट देने को कहा था। गाड़ी को झटका लगने से घबराहट में एक्सीलेटर दबाते जरीश के पाँव में मोच आ गई थी, जबकि चूड़ियों की वजह से कलाइयां जख्मी हो गई थी, और दायां बाजू दरवाजे के साथ लगने से कमर में भी दर्द फील हो रहा था, मगर डॉक्टर को बता ना सकी। सर फटने के अलावा इस शख्स को भी अच्छी खासी अंदरूनी चोटें और खराशें आई थी। जब तक इस शख्स की मरहम पट्टी हुई, सामान ने फैक्ट्री की गाड़ी और ड्राइवर को बुलवा लिया था। सर को घर ड्रॉप करके आना है, और तुम ये कुछ रुपए रख लो, मैं कल तुम्हारे यहाँ ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है इसे इंशाल्लाह
पूरा करने की कोशिश करूंगा। समान के इस कदर खलूस पर वो शख्स शर्मिंदा हो गया था। समान के बार बार कहने पर इसने वो हजार के चंद नोट रख लिए थे। तुम साहब को छोड़कर गाड़ी और इसे वर्कशॉप पहुंचा देना, साथ ड्राइवर को हिदायत दी थी। इस शख्स के जाने के बाद समान भी जरिश के लिए वहां से निकल आया था। कैसे हुआ एक्सीडेंट? समान ने पहली बार इसे दरियाफ्त किया था। इसने खौफजदा निगाहों से समान को देखा था। अगर नुकसान ज्यादा हो जाता तो पता नहीं कैसे गाड़ी की रफ्तार कंट्रोल नहीं हुई। ये शख्स दूसरी सड़क मुड़ने पर ऐन सामने आ गया था। मैंने बड़ी कोशिश की थी ब्रेक लगाने की, मगर आवाज में अब भी आंसुओं की नमी थी, बल्कि वो अब भी रो रही थी। धीमे धीमे सिसकारियां भर रही थी, आंसू पहुंचती। फौरी तौर पर तो नहीं, मगर अब अंदरूनी तौर पर जिस्म में कई दर्द जागे थे। कुछ तकलीफ का असर था और कुछ खौफ का। बाकी सारा रास्ता समान ने कोई बात नहीं की थी। घर पहुंचकर गाड़ी अंदर लाकर समान ने इसे गाड़ी से सहारा देकर निकाला था। जरिश के पाँव में अब सूजन आ चुकी थी। जूते समेत चलना इसके लिए मुश्किल हो गया था। अंदर आकर समान ने इसे सीधा रूम में लाया था। लेट जाओ, दिखाओ पाँव। समान के सामने वो झिझक गई थी। बस वो क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। दिखाओ पाँव। समान ने इसके करीब बैठकर कहा तो इसने एकदम पाँव पीछे कर लिए। अजीब सी शर्म ने घेर लिया था इस्लाम में। नहीं, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने क्रीम लगा दी थी। खाक ठीक हो, चला तो जा नहीं रहा तुमसे, समान ने बरहमी से कहा तो जरिश की आंखों में नमी आ ठहरी। गुजरे लम्हे फिर याद आए थे। कलाई पर बैंडेज की गई थी। समान ने हाथ बढ़ाकर इसको दाएं बाजू थाम लिया था। जरिश के पूरे वजूद में गोया करंट सा दौड़ उठा था। कुछ नहीं हुआ, ठीक हो। मगर समान ने ध्यान ही नहीं दिया था। आस्तीने हटाकर देखा तो कोहनी से ऊपर कंधे तक अच्छे खासे नील पड़े हुए थे। समान ने उंगली फेरी तो तकलीफ से रो दी थी। बहुत दर्द हो रहा है, गंभीर लहजे में पूछते इसकी आंखों में झांका था। वो इस वक्त बेबस थी। मरहम लगा दूं? इसके रोने ने समान पर बड़े अजीब से अंदाज में असर किया था। लहजे में खुद ब खुद जज्बे खिल गए थे। इसने दर्द में सारी लाया। लगता है मर जाऊंगी। ऐसा कैसे मरने दूंगा? तुम्हें तो हजारों साल जीना है मेरे साथ। समान के जज्बों का अजब आलम था। कुछ समझ में नहीं आया था। अंदर के अखबार को निकालने को इसने समान के सीने पर सर रख दिया था। दूसरे हाथ से गिरबान को मुट्ठी में जकड़े वो सारा एतमाद खो चुकी थी। इस वक्त तो इसके जब्त का ये आलम था कि इर्द गिर्द के माहौल का कोई अदराक ना था। शिद्दत से गिरिया जारी करते समान के कुशादा सीने पर सर रखे इसकी शर्ट भिगोते दिल खोल कर रो रही थी, बल्कि अंदर का गुबार निकाल रही थी। दुख की लपटों में लपेटे दिल को बहला रही थी। अगर सामान बर वक्त ना पहुंचता तो न जाने वो इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार होती। कुछ देर बाद अंदर का गुबार निकला। दिल हल्का हुआ तो जरिश को एहसास हुआ कि वो कुर्बत के किन कयामत खेज लम्हों में जकड़ी गई है। प्लीज़, मेरा सांस बंद हो रहा है। रुखसारों से आंसू पूछते हाथ टटके थे। इस इल्तिजा पर समान ने बगौर इसे देखा। वो नजरें चुराती बाजों का हिसार तोड़ते पीछे हटी थी। समान ने मुस्कुराकर शापर से एंटी सेप्टिक क्रीम निकालकर इसका बाजू थामा था। मैं लगा लूंगी, कमजोर लड़खड़ाती आवाज में नजरें झुकाए गोया हुई थी। समान की कुर्बत के ये लम्हात इस पर बड़े भारी थे। इसके समझ में नहीं आ रहा था इन कयामत खेज घड़ियों से कैसे निकले। इसके बाजू पर क्रीम लगाते समान ने इसे देखा। सुर्ख चेहरे पर लज्जती पलकों का रक्स बड़ा साहिर कुन था। आपको पापा ने भेजा? वो इन कमजोर लम्हों से निकलना चाहती थी। समान की मौजूदगी को यकसर फरामोश करार दे देना चाहती थी। खुद से बमुश्किल काबू पाते समान को देखा, बल्कि समान अहमद के मचलते जज्बों के आगे हदबंदी करना चाहिए नहीं, बल्कि चचा जान का मोबाइल मैंने रिसीव किया था। समान ने फौरन इनका ग्रेस पढ़ा था। बड़ी खूबसूरत मुस्कान आई थी होंठों पर। आप ड्राइवर को भेज दें, वो इनको ले आए। वो मजीद कंफ्यूज हुई। समान को हटाने का फौरन बहाना चल। मैं अब्बू को फ़ोन कर देता हूँ, वो छोड़ देंगे। समान को भी ख्याल आया। समान ने अपना मोबाइल निकालकर इनसे बात की। सईद अहमद से कहकर सऊद और शाइस्ता को घर छोड़ने की बात की थी। मेरे बारे में मत बताइएगा। कल के दौरान जरीश ने कहा था। इन 2-3 लम्हों में इसने खुद को संभाल लिया था। मैं यास्मीन को कहता हूँ वो कुछ खाने को दे, फिर मेडिसिन ले लेना। वो खामोश रही थी। यास्मीन को आवाज़ दी। इसके अलावा और कहीं चोट तो नहीं आई? समान ने यास्मीन को पकड़ते इसको भी पलट कर देखा था। समान के अंदाज में इसके लिए बड़ी फिक्र थी। जरीश का जी चाहा कमर में दम बदम बढ़ते दर्द का जिक्र करते, मगर फिर झिझक गई थी। नफी में सर हिलाते फिर समान कमरे से निकल गया था। समान के कमरे से निकलने के बाद इसने तकिए के सहारे अपनी कमर सीधी की। एक ठेस सी रगोपे में उतरती चली गई थी। मामा पापा फंक्शन के अख्ताम के बाद पहुंचने वाले थे। यूं अकेले आने पर बातें सुनने को मिलेंगी। वो एक तरफ इस हादसे का सुनकर वो दोनों यकीनन बड़ा नाराज होने वाले थे। तकिए पर सर रखते इसको मुतफिक्र
तफक्कुर ने आन लिया था। हमीद साहब ने अपने तय पूरी कोशिश कर डाली थी कि शारिक जमान के दिमाग में असल हकीकत डाल सके, मगर शारिक को तो कुछ सुनने पर आमादा ही नहीं था। वो बारहा इसके ऑफिस घर के चक्कर लगा चुके थे, मोबाइल पर बात कर चुके थे, मगर जैसे ही नवेरा का नाम आता वो बदलिहाज हो जाता। पिछले 2 दिन से वो अपना हर काम बुलाए इसके बात के पीछे लगे हुए थे, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। इनकी धमकी पर रज़ा बिल्कुल खामोश हो गया था। शारिक से मिलने पर वो अभी आमादा नहीं हुआ था। वो ये भी मानने पर आमादा नहीं था कि इसने कोई गलत काम किया है, बल्कि इसका अभी तक यही मौक़िफ़ था कि इसने शारिक को अपने जज्बात से मुतल्लिक आगाह किया है। नवेरा से मुतल्लिक बदजन नहीं किया। ये शारिक के अपने जहन का फतूर था, और ये फतूर क्यों बरपा हुआ था और ये मानने पर आमादा नहीं था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था इसने कोई गलत कदम उठाया है। और इस वक्त भी वाहिदा बेगम के यहाँ आए हुए थे। आपा, आप मेरे साथ चलें, हम नवेरा को ले आएंगे। शारिक आहिस्ता आहिस्ता सारी सच्चाई जान लेगा। अब इसे कुछ भी समझाना बेसुध है रह गया। रज़ा तो मैंने फैसला कर लिया है। इसी माँ रज़ा रिमशा और रज़ा का निकाह कर दूंगा। जब ये किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा तो शारिक के शकूक शबहात भी दूर हो जाएंगे। नवेरा नहीं मानेगी, बड़ा बुरा किया है इसने। रज़ा और शारिक दोनों ने मिलकर हमीद साहब की बात सुनकर अम्मा आबदीदा हो गई थी। कुछ नहीं होगा, मानना पड़ेगा इसे। ये बात भी खालदा आपा ने नबील तक से बात छुपाना चाहती हैं, और ये इस तो मुमकिन नहीं, वरना कुछ भी बाई नहीं। और आज ही मेरे साथ चलें, नबील ऑफिस में होगा, इसके आने से पहले ही हम जाकर नवेरा को ले आएंगे। और शारिक, आप मान बनकर इसे समझाएं। यूँ एकदम नवेरा के खिलाफ हो जाना बच्चों का खेल नहीं। मान लेता हूँ सारा कसूर रज़ा का है, मगर क्या शारिक को नवेरा की पिछली ज़िंदगी कुछ भी याद नहीं? दिमाग ख़राब है इसका और कुछ नहीं। जब मर्द का दिमाग ख़राब होना हो तो सिर्फ एक लम्हा लगता है शारिक के सामने, तो फिर अपनी माँ बहन की पूरी ज़िंदगी है। नवेरा के साथ नाहक जुल्म हो रहा है। आप माँ बनकर शारिक को मजबूर करें और खुद जाकर ले आएँ। अपनी माँ होने का रोब रखें। बीवी घर में होगी तो वो भी धीमा पड़ जाएगा। चलो ये भी करके देख लेते हैं। इन्होंने एक गहरी सांस ली थी। तुम खालदा से जाकर बात कर लो, मैं भी रात को शारिक से बात करने की कोशिश करूंगी। हमारे साथ चले। अगर नहीं मानता तो फिर कल तुम्हारे साथ जाकर ले आऊंगी। ना हक बच्चे को बर्बाद नहीं होने दूंगी। चलिए ठीक है, आप शारिक से बात करके मुझे आगाह कर दीजिएगा। हमीद साहब उठ खड़े हुए थे। इंशाल्लाह कल जाकर नवेरा को ले आएंगे, अंदाज हतमी था। समान कल से इस्लामाबाद वाले ऑफिस का चार्ज संभाल रहा था। मीटिंग के दौरान सऊद अहमद से जिक्र किया था, और इनका जहन बाकी तमाम बातों को भूलकर इस नुक्ते पर अटक गया था। समान के इस्लामाबाद जाने का मतलब था ज़रिश का वहाँ सेटल होना। एक इंतशार पर मबनी बटा हुआ ख़ानदान अपनी सबसे लाडली चहेती बेटी को देने का इन्होंने कभी सोचा नहीं था। इनके दिल में दुख दर्द की एक लहर सी उतरी थी। एक बटे हुए ख़ानदान की बुनियाद बनेगा। शिकस्त व फरफिदगी का ये सिलसिला मज़ीद आगे चलेगा। क्या ज़रिश एक इल्ज़ाम लेकर सारी ज़िंदगी समान के साथ खुश रह सकेगी? इन्हें लगा इस सवाल ने इनके अंदर एक तूफान उठा दिया। आज नहीं तो कल ज़रिश को समान के साथ जाना ही है, तो क्या ताहिरा बेगम ज़रिश को कबूल कर लेगी? वो अपनी उलझी हुई परेशान कुन सोचों को लिए मीटिंग रूम से निकलकर अपने कमरे में चले आए थे। समान पर इन्हें हर हाल में एतबार था, मगर ज़रिश के जज्बाती तबीयत भी किसी तौर छुपी हुई नहीं थी। और अब ज़रिश का वहाँ भी ना जाने का हतमी अंदाज, बल्कि फैसला। क्या ज़रिश इनकी मजबूर करने पर इस्लामाबाद जाने पर मजबूर हो जाएगी? क्या वह खुश कभी ना रह पाएगी? इन्हें लगा इस नुक्ते पर सोचते सोचते इनके दिल का दौरा बढ़ जाएगा या दिमाग की कोई नस फट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। इन्होंने आंखें खोलकर देखा। समान बड़ी पुरतशवीश निगाहों से देख रहा था। इन्होंने सर के इशारे से जवाब दिया था। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं, बैठो। वो सीधे हुए थे। मैं 2-3 चक्कर लगा चुका हूँ, आप किसी भी तरह डिस्टर्ब ना करने का कह दिया था। मुझे तशवीश हो रही थी। खैरियत है ना? वो सामने ही टिक गया था। तबीयत कुछ बोझल सी लग रही है, डॉक्टर के पास ले चलूं? इनके बुझे अंदाज में वो मजीद तफक्कुर हुआ था। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। ये क्या है? इन्होंने समान के हाथ में मौजूद फाइल की तरफ इशारा किया तो समान ने फाइल इनके सामने रख दी। ये इस्लामाबाद ऑफिस के इस्टेब्लिशमेंट के
कागजात हैं, एक कॉपी अब्बू के पास है, एक आपके पास। इन पर आपके दस्तखत चाहिए थे, फिर कुछ डिस्कशन भी करना है। इन्होंने बेतवज्जी से कागजात उलट पुलट कर देखे। कल इस्लामाबाद ऑफिस के 4 संभाल रहे हो। कागजात बेदिली से दस्तखत करते हुए इन्होंने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में कहा। जी। समान ने बगौर इन्हें देखा। इन्होंने पेपर स्टडी किए बगैर ही दस्तखत कर दिए, जबकि बाज़ पॉइंट्स बड़े गौर तलब थे और समान इन्हें पॉइंट्स पर इनकी राय लेना चाहता था, मगर इनकी बेतवज्जी देखकर टाल गया था। रिहाइश उस्मान के साथ ही होगी। जी। समान को अंदाज़ा हो रहा था इन्हें क्या तकलीफ हो रही है। जरीश के बारे में क्या सोचा है? इन्होंने समान को देखा। समान ने एक गहरी सांस ली। वो क्या पूछ रहे थे? समान समझ रहा था। हमारी तरफ से इतना कुछ हो चुका है चचा जान के अब कोई भी फैसला जरीश की फीलिंग को मजरूह करने के लिए वाला मामला होगा। सोचना जरीश को है या आप लोगों को। समान का अंदाज बड़ा संजीदगी लिए हुआ था। सऊद अहमद ने अपनी कपकपाहट, अपनी कनपटियां सहलाई थी इसके रूबरू। इस मौजू पर पहली बार गुफ्तगू हो रही थी, सो दोनों ही मोहतात थे, सोच कर बोल रहे थे। मैं खुद भी मजबूर हूँ। पहले ही मेरे एक गलत और कबल अज वक्त फैसले ने कई जिंदगियों को दाव पर लगा दिया है। अब मैं नहीं चाहता कि जरीश हमारे किसी फैसले को बहालत मजबूरी कबूल करे। मैं चाहता हूँ तुम जरीश से बात करो, इसे कायल करो, प्यार मोहब्बत से। जैसे भी तुम्हारा इससे एक वाज़ा रिश्ता है। जज्बात से घर बनते नहीं बिगड़ते हैं। भाभी बेगम किसी भी तरह मुफाहमत की राह नहीं अपनाएंगी और मैं जरीश की सारी उम्र अपने घर बिठाने वाला नहीं। अगरचे जरीश की इंतहा पर मबनी सोच इस बात की तर्जुमानी कर रही है कि वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि फैसला जरीश खुद करे और जज्बात से हट कर करे, हकीकत को फेस करते हुए फैसला करे। पेपर वेट को उंगलियों से घुमाते इन्होंने कहा था। चचा जान, जरीश का मौक़िफ़ गलत नहीं। अब तक जो कुछ भी हो चुका है इसकी रोशनी में बड़ी ज़्यादा भी आम सी बात है। वो इस वक्त हक पर है। रही रिश्ते की बात, तो रिश्ता मानने से होते हैं। वो हमारे घर जाना नहीं चाहती और अम्मी कभी मुफाहमत पर नहीं राजी होंगी। इस्लामाबाद सेटल होना ऑप्शन भी अब्बू की तरफ से है, मगर जिस तरह हालात बदले हैं इनमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अब्बू ये फैसला क्या असरात मुरतब करता है। बहरहाल शादी दो इंसानों के मिलाप का नाम नहीं, ये ताल्लुक़ ख़ानदानों की बका का ज़ामिन है। मैं फिर भी कोशिश करूँगा, जरी से बात करूँगा, मगर मजबूर नहीं। समान ने भी खुलकर इनसे बराह रास्त बात कर लेना चाहिए थी। सऊद अहमद खामोशी से समान को देख रहे थे। समान चंद पल मजीद वहां ठहरा और फिर इसके जाने के बाद वो कितनी ही देर तक उलझे रहे, इस मसले का क्या हल होगा। 12 बजे के करीब इनके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। वो दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने के बाद दूसरी तीसरी बार चेकअप ज़रूर करवा लेते थे। वो वहाँ से निकलने तो समान रास्ते में था। कहाँ जा रहे हैं? पार्किंग में ही आमना सामना हुआ तो समान रुक गया था। डॉक्टर की तरफ जाना है, आज अपॉइंटमेंट है। और तुम? अच्छा हाँ, आपने जिक्र किया था, अकेले जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ, कल इस्लामाबाद जाना था, सोचा ज़रूरी तैयारी कर लूँ। चलें आपके साथ, मैं भी चलता हूँ। सऊद अहमद ने इनकार करना चाहा, फिर चुप हो गए। समान के इनके साथ ही डॉक्टर के पास आया था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने मेडिसिन में तरमीम की थी, चंद हिदायत और वही रूटीन की बातें। समान इनके साथ ही घर आया था। सऊद अहमद दोबारा ऑफिस जाना चाहते थे। वो आराम से सारे मसले को सोचना चाहते थे, कोई हल निकालना चाहते थे। वो घर आए तो शाइस्ता बेगम घर पर नहीं थी। शाइस्ता कहाँ है? नौशी बाजी आई थी, इनके साथ बाजार गई हैं और जरीश वो किचन में है, एक हाथ में सालन वाला डोंगा पकड़े बगैर दुपट्टे के। वो सीधी ऑफिस में आ गई थी। अरे पापा, आप? पापा और समान को देखकर सटपटाई थी। पापा वहीं लाउंज के सोफे पर बैठ गए थे, जबकि समान ने इनकी मेडिसिन वाला शॉपर टेबल पर रख दिया था। आप आज जल्दी आ गए, खैरियत थी? सटपटाते अंदाज में इसने सऊद अहमद से पूछा था। जरीश ने कुछ तशवीश से समान को देखा था। पापा का अंदाज बेज़ाहिर नॉर्मल ही था, मगर समान का पापा के साथ आना, चचा जान बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी इसलिए जल्दी आ गए हैं। ओह। वो कुछ रिलैक्स हुई। वो फौरन किचन की तरफ बढ़ी थी। कुर्सी पर पड़ा दुपट्टा इसने कंधों पर फैला लिया था। क्या कर रही हो? समान की आवाज़ पर वो उछली पड़ी थी। पलट कर समान को गुस्से से देखा। कुछ नहीं, बड़ी रुखाई से जवाब मिला था। समान के होंठों पर मुस्कुराहट रिंग गई। स्मेल तो बहुत बड़ी अच्छी आ रही है। कुकिंग का शौक हो रहा है आजकल। बड़ी एहतियात से पेड़ा बनाकर रोटी बेल रही थी। किचन के मामले में इसकी कारकर्दगी का अच्छी तरह अंदाजा था। मुस्कुरा कर जवाब दिया। आपसे मतलब?
इससे 3 दिन पहले वाली बेइज्जती याद आई थी। एक्सीडेंट वाली रात जब मामा पापा घर आए थे और इसकी हालत और कारकर्दगी का सुनकर जो कुछ मामा ने इसे सुनाया था, वो एक तरफ समान के सामने यूं बुरी तरह बेइज्जत होना, वो सख्त नाराज थी। क्या जरूरत थी मामा पापा से जिक्र करने की? समान कोई बहाना भी तो कर सकता था। बाजू के जख्म कुछ ठीक हो चुके थे, पाँव की मोच भी निकल चुकी, कमर की तकलीफ बरकरार थी। क्या पकाया है? समान इसकी खफगी को किसी तौर खातिर में नहीं लाया था। ढक्कन उठाकर देखा, कीमे की बड़ी अच्छी खुशबू थी। वाह कीमा, तुम्हें कैसे पता चला मैं आ रहा हूँ? जरीश ने रोटी तवे पर डालकर समान को घूरा। यास्मीन, साथ ही इसने यास्मीन को भी आवाज लगाई। अगले ही लम्हे वो चिराग के जिन की तरह हाजिर हुई। ये रोटी देखो, मैं पापा को देख लूं, और हाँ, 1-2 रोटियां और बना लो, शायद पापा भी खाएंगे। इसे कहकर वो किचन से लाउंज में आ गई थी। पापा, क्या हुआ है? सऊद अहमद अभी तक सोफे पर आरामदा हालत में बैठे हुए थे, आंखें मूंदे। वो इनके पास बैठी तो इन्होंने आंखें वाक करके इसे देखा। कुछ नहीं बेटा, इन्होंने मुस्कुरा कर जरीश के सर पर हाथ रखा था। खाना खाएंगे? नहीं, एक गिलास जूस का पिला दो, मैं बस कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। मैं कमरे में जा रहा हूँ। समान को खाना खाए बगैर ना जाने देना, लंच टाइम है, अच्छा नहीं लगता। इन्होंने इसे कहकर हिदायत करते हुए अपने कमरे की राह ली थी। वो जब किचन में लौटी तो समान कोक से लुत्फानंदोज हो रहा था। शायद यास्मीन ने दी थी। वो फ्रिज से जूस निकालकर ग्लास में उंडेल कर पापा के पास चली आई थी। वो पापा से चंद बातें करने लगी थी। जूस पीकर इन्होंने मेडिसिन ली थी। एहतियात से इन्हें मेडिसिन देकर कमरे की लाइट ऑफ करते खाली गिलास लिए। जब किचन में लौटी तो यास्मीन ना सिर्फ रोटियां बना चुकी थी बल्कि खाना भी टेबल पर लगा चुकी थी। पापा खाना नहीं खाएंगे। टेबल रेडी देखकर इसने यास्मीन को कहा। वो सवालिया नजरों से देखने लगी। ठीक है, तुम जाओ, हम दोनों खा रहे हैं। समान के कहने पर जरीश ने घूरा। यास्मीन किचन से चली गई थी। जरीश शशो बनी में पड़ गई थी। समान हाथ धोकर टेबल के गिर्द कुर्सी घसीट कर बैठ चुका था। वो क्लस कर रह गई थी। आओ भाई, खाना ठंडा हो रहा है, आप खाएं, मुझे भूख नहीं। इतनी तगदो के बाद इसे लगा जैसे इसकी भूख मर गई है। इंसान से नाराजगी जचती है, खाने से नहीं। आ जाओ। समान ने उठकर इसके पास आकर ना सिर्फ कहा था बल्कि पकड़कर इसे कुर्सी पर बिठाया भी था। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं। वो चटकी थी। समान वापस अपनी सीट पर बैठ चुका था। खाने से पता चलता है कि भूख है या नहीं, खा कर देखो तो सही। समान ने एक प्लेट में बने कीमे का सालन निकाल कर इसके सामने रखा था। वो कुछ सख्त कहना चाहती थी मगर जब्त कर गई थी। भूख इसे लगी हुई थी। ये और बात थी कि समान की मौजूदगी में खाते हुए गुस्सा आ रहा था। अगर पापा की हिदायत ना होती तो वो समान को खाने पर कभी नहीं बैठने देती। आप खाएं, मैं भी खा लूंगी। पापा का ख्याल आते ही वो कुछ धीमी पड़ी थी। नौशी कैसी है? खाना खाते हुए समान ने इसे देखा, जो सर झुकाए खाने से ज्यादा गौर फिक्र में गर्क थी। ठीक है, जाऊंगा मैं आज इनकी तरफ, काफी दिन हो गए हैं मिले हुए। समान ने कहा तो वो चुप हो गई थी। फिर दोनों ने खाना शुरू कर दिया था। चाय पियेंगे? खाने के बाद बर्तन समेटते इसने पूछा था। इसे ये सब बड़ा अजीब लग रहा था मगर वो मजबूर थी। समान ने इसे बगौर देखा। घरेलू सादा सूट और हुलिया में वो खासी कम उम्र लग रही थी। इनके मुकाबले में तो वो खासी इमेच्योर लग रही थी। आप लाउंज में चलकर बैठे, मैं बना लाती हूँ। समान की निगाहों से वो अगले ही पल पजल हो गई थी। समान की निगाहों में अजीब सी लपक थी। मैं तुम्हारे रूम में जा रहा हूँ, इधर ही आ जाना। अपने रूम का सुनकर वो पलटी थी मगर समान किचन से निकल चुका था। इसने लब मींच लिए थे। यास्मीन को बुलाकर इसने बर्तन धोने और चीजें समेटने को कहा था। जब तक चाय बनी थी वो खुद से ही उलझती रही थी और अब चाय लेकर खुद जाए या यास्मीन को दे, वो फैसला न कर पाई। बड़ी हिम्मत करके वो अपने कमरे की तरफ आई थी। दरवाजा धकेल कर कमरा खोला तो वो तारीकी ने इस्तकबाल किया था। लाइट्स ऑफ ही रहने तो। आगे बढ़कर इसने लाइट्स ऑन करना चाहिए तो मगर हाथ समान की पुकार पर रुक गया था। वो बड़े मरे कदमों से पलटी थी। समान बिस्तर की दाईं जानिब बैठा हुआ था। इसने चाय का कप साइड टेबल पर रखा। बैठो। समान ने इसे देखा। वो नजरें चुराती पलटी थी। आगे बढ़कर खिड़की खोलकर पर्दे हटा दिए थे। इस अंधेरे से वहशत सी हो रही थी। वो खिड़की की तरफ रुक किए खड़ी हो गई थी। जरीश, इधर आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। समान के बुलाने पर वो उलझी थी। आप कहें, मैं सुन रही हूँ। इसने पलट कर देखने की गलती नहीं की थी। अगर देख लेती तो कंफ्यूज हो जाती। और समान के होंठों पर इसकी ग्रेस बड़ी जानदार सी मुस्कुराहट ठहरती थी। मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ। समान चाय का कप लिए इसके अकब में आ खड़ा हुआ था। इस इतला का क्या मतलब भला? मगर वो पलटी नहीं थी। चलोगी मेरे साथ? इसके कंधे पर हाथ रखकर समान ने इसका रुख अपनी तरफ किया था। समान के लम्स ने इस पर बरकी रूह का काम किया था। मैं क्यों भला? वो समान की इस हरकत पर सारा एतमाद भूल गई थी। आंखों में हरासा
आ ठहरी थी घर की तन्हाई में, कमरे की तारीकी में। इसका सारा कॉन्फिडेंस उड़ गया था। हनीमून ट्रिप हो जाए, अगर इस्लामाबाद पसंद नहीं तो कहीं और चले चलते हैं। सामान को इन लम्हों में गोया शरारत सूझी थी। वो तो सर से पैर तक कांप गई थी। ऐसे पुतक पीछे हुई, सामान इसे जबरदस्ती ले जाएगा। सामान हंस दिया, आंखें चुराए कंधों पर फिसलता दुपट्टा दुरुस्त किया। मुझे कहीं नहीं जाना, हनीमून पर भी नहीं। चाय की चुस्कियां लेते सामान इसकी तरफ झुका था। प्लीज। जरीश हाथों में चेहरा छुपाकर सिसक उठी थी। इसकी बर्दाश्त बस यहीं तक थी। सामान ने चंद पल इसे रोने दिया। चाय का कप खाली करके टेबल पर रखकर अपनी मुकम्मल तवज्जो इसकी तरफ की। जरीश इधर देखो मेरी तरफ। इसके हाथ चेहरे से हटाकर कहा तो इसने भीगी पलकें समेत सामान के दराज सरापे को देखा। आप मुझसे इस तरह की गुफ्तगू मत करें। सामान ने कुछ कहना चाहा, इससे पहले ही टोक दिया। सामान खुलकर हंसा था। मसलन कैसी? सामान ने इसकी रुखसार पर लहराती लिट को हल्के से झटका दिया तो वो मजीद कंफ्यूज होकर एकदम पीछे सिरकी। सामान बड़ा महजूज हुआ था। यार बीवी हो मेरी, इतनी ना समझ नहीं हो, कम उम्र सही मगर मियाँ बीवी के आपस के तकाजे तो समझती ही हो ना। सामान के गंभीर अंदाज ने इसके छक्के छुड़ा दिए थे। वो तो काटो तो बदन में खून नहीं वाली कैफियत में थी और इस वक्त लग भी बड़ी प्यारी रही हो। इसके कंधे से फिसलते दुपट्टे को देखते सामान ने इसकी गर्दन के गिर्द लिपटे लॉकेट पर अपनी उंगली रखी थी। एक दफा फिर लॉकेट इसकी गर्दन के गिर्द लिपटे देकर एक सुरूर सा जागा था। आप जाएं प्लीज, इसने हाथ झटक देना चाहा था। ये लॉकेट और कंगन तुमने बड़ी बेदर्दी से फेंक दिए थे इस रात तुम्हारी गाड़ी में। शायद सामान ने चेन को उंगली पर लपेटा था। बताया नहीं तुमने? चलोगी इस्लामाबाद? इसके चुप रहने पर फिर से टोका था। नहीं, इसने सख्ती से कहा। हनीमून पर भी नहीं? जरीश को लगा बस इसका जब जवाब देने वाला है। इसने सामान की तरफ देखा। सामान की आंखों से निकलती तपिश और जज्बों की गर्मी इसके अंदर तूफान बर्पा कर रही थी। आप मुझे तंग करने के लिए यहाँ आए हैं? बड़ी बेएतबारी खफा निगाहों से शिकवा किया। सामान हंस दिया। नहीं, आया तो था मैं चचा जान को छोड़ने, मगर जानती हो चचा जान की हार्ट कंडीशन आज अच्छी नहीं थी, बर्डन में थी। इनके असाब नॉर्मल रिएक्शन नहीं कर रहे थे। वो सख्त डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अगले ही लम्हे सामान ने संजीदगी से इसे बताया था तो वो सुनकर एकदम हरासा हो गई थी। आजकल इनके डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह मेरी ज़ात है, यानी हम दोनों की। सामान ठहर कर इसे देखा। वो नजरें चुरा गई थी। तुम्हारे फैसले से वो सख्त परेशान है जरीश। सामान ने इसे बताया था। पापा को दरमियान में मत लाए, आप अपनी बात करें। अगले ही पल इसने फिर खासी तल्खी से कहा था। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरे साथ कल इस्लामाबाद चलना चाहिए। मैं इस मौजू पर आपसे तफसील से बात कर चुकी हूँ, बल्कि फैसला कर चुकी हूँ। आप मुझे बोर मत करें। सामान ने चंद पल इसके तल्ख रवैयों को देखा था। और अगर मैं तुम्हें फोर्स करूं कि बहरहाल तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो, ज़बरदस्ती का हक रखता हूं मैं। जरीश ने झटके से सर उठाकर बड़ी बरहमी से सामान अहमद को देखा था। सामान के इन अल्फाज ने इसको आग की लपटों में धकेल दिया था। तब नुकसान सरासर आपका होगा। निकाह हो जाने और दिल से मान लेने में बड़ा फ़र्क होता है। जरीश के लहजे से गोया चिंगारियाँ सी उड़ रही थी। मुझे बार बार ये मत जिताएं कि हमारा क्या रिश्ता है, जब सिरे से मैं किसी ताल्लुक को मानती ही नहीं। मैं किसी को ज़बरदस्ती का हक भी नहीं देती। इसने बड़ी सख्त अंदाज में सिरे से इस ताल्लुक को ही रद्द कर दिया था। मैं इस्लामाबाद तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं जाऊंगी आपके साथ। बात असूल की है। ये लड़ाई आपकी वालदा ने शुरू की थी और इनके इल्ज़ाम ने मेरी शख्सियत, मेरे किरदार को दागदार किया है। अगर आप समझते हैं कि इस नामुनिहात ताल्लुक से आप मुझसे मेरा कोई रिश्ता बन गया है तो खाम ख्याली है आपकी। लोग हमारी ज़ात को किसी तरह डिस्कस करते हैं, आप बेखबर नहीं। और मैं एक इल्ज़ाम के साथ सारी ज़िंदगी नहीं जीऊँगी। इसने बड़ी तल्खी करवाहट से ये बात दोहराई थी। गलत, मैं नहीं आपकी वालदा हैं। इन्हें अपनी गलती मानना होगी। हज़ारों लोगों में इन्होंने मुझे तमाशा बनाया था और इन्हीं लोगों में वो अपना जुर्म कबूल करेंगी तो शायद मैं हर बात भूल जाऊंगी, मगर अब नहीं। मुझे बार बार मजबूर मत करें। मेरे सामने बार बार आकर इस नामुनिहात रिश्ते को मेरी मजबूरी मत बनाएं। जरीश के लहजे और अंदाज में किसी भी किस्म की गलती, कोई लचक नहीं थी। सामान ने सख्ती से लब भींच लिए थे। जी तो इस किस्त को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छी खासी लॉन्ग एपिसोड हो गई आज, 1.25 घंटे की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी किया करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी किया करें। मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।